آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا یہ تسلسل ماہ رجب سے شروع ہوا اور پورا ماہ شعبان آپ کے حاضر خدمت رہے، اور انشاءاللہ العزیز ماہ عظیم رمضان میں بھی آپ لوگوں کے حاضر خدمت رہیں گے۔ اور در حقیقت اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بیماروں کی شفایابی کے لیے یا کوئی بھی حاجت آپ کی ہے اس حوالے سے، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی ہیلپ کی حیثیت سے یا اسپانسر کی حیثیت سے آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو نظر ہے اور جو انفاق ہے یقیناً وہ بالکل اس مقام پر ہے کہ جہاں استحقاق پایا جاتا ہے، یعنی بالکل یقیناً اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ راہ حضرات اہل البیت علیہ السلام میں خرچ کرے۔ یعنی اگر انسان راہ اہل البیت علیہ السلام میں خرچ کر رہا ہے تو یقیناً یہ شخص اس کی جو نظر ہے یا جس عنوان سے بھی انہوں نے شرکت کی ہے، انفاق کیا ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک یہ قبول ہے، اور اس کا اجر دو مقامات پہ انسان کو ملتا ہے۔ دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، اور آخرت میں جب انسان اس فانی دنیا سے برزخ کی جانب چلا جائے یا اس سے جو آگے والے مراحل ہے اس میں بھی یقیناً یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اگر بات کروں انفاق کی تو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں بالکل انفاق کے حوالے سے بہت اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً اس مقام پر کہ جہاں پر حق ہے، حقوق ہے، اس جگہ پر اگر اپنا انفاق کر دیتا ہے تو یقیناً اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جو انفاق انسان کر رہا ہے، دیکھیں اس چیز کو بھی اس پر بھی غور کریں کہ اگر انسان کسی ایک جگہ پر انفاق کر رہا ہے تو اس میں کچھ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ تو جو ہے وہ بندوں کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو انسان ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کو مکس کرے، چونکہ ظاہر ہے اللہ کے حقوق میں اہل البیت علیہ السلام بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری توجہ خلق خدا پر توجہ رکھے لیکن خود اللہ کے اوپر اللہ سے غافل ہو جائے۔ تو یہ آپ نے جو ہے اس عنوان سے دونوں کو جی سمینہ ناز صاحبہ آج کی ہماری پہلی کالر ہے کرناٹکا انڈیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ ہمیں سب خیریت سے ہیں۔ ہمارے شوہر الحمدللہ منصور عباس ڈائلسس پیشنٹ جو ہے وہ آنکھوں کا علاج کر کو ہی، ان کے واسطے آنکھوں کی روشنی کے واسطے دعا کرو۔ جی ضرور انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً آپ کے شوہر کے لیے دعا گو ہے، مولا ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو آنکھوں کی روشنی عطا فرمائے۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس پروگرام میں بہت سارے مومنین کال کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں حسب توفیق جتنا آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شامل ہونا چاہیں گے؟
जी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। अच्छा, किसी एक शख्सियत का नाम ले लीजिएगा इमामों में से या शुहदाए करबला में से, जिसके साथ आपकी ये नज़र जो है वो निस्बत हो जाए। मौला हजरत अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। अच्छा, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, अगर मुख्तसरन सलाम करना चाहें और दुआ करना चाहें, बिस्मिल्लाह फरमाएं। रोज़ा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपके सामने है, बिस्मिल्लाह। सलाम हो मेरा करबला इमाम हुसैन पर और मौला हजरत अब्बास पर। मेरे शौहर मंसूर अब्बास डायलिसिस पेशेंट थे, उनके वास्ते सेहत के वास्ते दुआ करें और उनके वास्ते दुआ करें। हर मोमिन और मोमिनात के वास्ते भी सेहत तंदुरुस्ती के वास्ते दुआ करें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपको और मंसूर अब्बास और आपके बच्चों को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और चूँकि डायलिसिस पेशेंट है मंसूर अब्बास, उनके लिए खुसूसी दुआ गो है, मौला उनको सेहत कामिल आवाज़ नसीब फरमाए। और उनके आंखों की रोशनी के लिए भी दुआ कर रहे हैं, मौला उनको आंखों की बीनाई अता फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे आप, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहे। और आपसे सिस्टर एक गुजारिश ये भी है कि आप इंशाअल्लाह, आपके पास मोबाइल है और हमारा नंबर भी महफूज है, अपने अजीज़ अकारिब दोस्त जो भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ हमारा नंबर शेयर कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी कॉल कर सके और इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर के हैसियत से और दुआ भी कर सके, मौला को सलाम भी कर सके, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाज़िर खिदमत रह सके। मौला सलामत रखे आपको। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। माशाल्लाह, समीना नाज साहिबा कर्नाटक इंडिया से, और इनके शौहर अरसे दराज से आलील हैं। यकीनन इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से काफ़ी दफ़ा इन्होंने दुआ की है। तमाम मोमिनीन से भी गुजारिश है कि हातमन और जहाँ तक हो सके देखें, जो ज़रूरतमंद मोमिनीन है दुआओं की भी तो ज़रूरत होती है ना। सिर्फ ये तो नहीं है कि इंसान जो है उसको माली ज़रूरत या किसी अमली ज़रूरत उसको हो, ज़ाहिर सी बात है दुआ की ज़रूरत होती है। और आप तमाम मोमिनीन जितनी भी हमारे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि जब भी कोई दुआ करे तो आप भी दिल खोल के उनके लिए दुआ किया करें। और तमाम मोमिनीन, बल्कि इस उन्वान से ऐसा ना सोचे कि ये सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम है जैसे इंसान बैठ के, बल्कि आप जो है ज़ाहिर है करबला मोहल्ला से आप तक आवाज़ पहुंच रही है और ये करबला मोहल्ला का नूर है जो आपके घरों तक पहुंच रहा है। तो इन प्रोग्राम्स को, बल्कि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम जो दीनी प्रोग्राम्स है यकीनन आपके लिए बनाए जाते हैं। और आज के इस दौर में दूसरी चीज़ों के लिए लोगों के पास वक्त रहता है, लेकिन दीन के लिए ज़ाहिर है उतना ज़्यादा वक्त लोग नहीं देते। तो आपसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप स्पॉन्सर तो करें जितना कर सकते हैं, और जितनी आपकी कुदरत है यकीनन उस एतबार से आप करें। लेकिन उसके साथ साथ यकीनन जो मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआ में भी आप शिरकत किया करें। यकीनन इसी से जो है दुआएं जो है वो कबूल हो जाती है। मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम के उन्वान से मैं अर्ज़ कर रहा था कि राह खुदा में इन्फ़ाक़ करना दो तरीके से, दो जगहों पर इंसान इन्फ़ाक़ करता है, या तो अल्लाह के लिए करता है या अल्लाह के बंदों के लिए, यानी अल्लाह या इबादल्लाह, इसको इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो अगर इंसान इन्फ़ाक़ कर रहा है, अवलन तो सबसे पहले ज़रूरी और लाजमी है कि इंसान जब भी वो करे तो एक तहकीक मुख्तसरा अगर हो जाती है तो ये कोई बुराई नहीं है कि ऐसा ना हो। ये नहीं है इंसान को गुमान रखना चाहिए, लेकिन उसमें अगर इंसान तहकीक करके दे तो उससे किसी दूसरे, मसला अगर अल्लाह के बंदों में आप जो है वो इन्फ़ाक़ कर रहे हैं और वहाँ अपने तहकीक की, हो सकता है कि एक प्रोफेशनल बेगर वो जो है उस ज़रूरतमंद का जो वाक़यन फ़कीर है उसका हक़ कहीं न खा जाए। ऐसा आप देख रहे हैं ना बहुत सारे जगहों पे, मख़सूसन मुक़द्दस मकामात पे, कि जहाँ पर जो है वो प्रोफेशनल फ़कीर जिसको कहते हैं वो वहाँ पर हाज़िर होते हैं और वो लोगों से जो है ज़ाहिर है दुनिया का तलबगार है, उसको किसी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के और उसको मार्फत ही नहीं है ना, वो तो अंधा फ़कीर है। तो
इस उन्वान से बहरहाल अगर एक इंसान तहकीक करके दे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और इसी तरीके से जो दीनी इदारे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के लिए अगर हम आपसे हेल्प तलब कर रहे हैं, आपसे डोनेशन तलब कर रहे हैं, तो यकीनन इस उन्वान से कि अगर आप तहकीक भी करना चाहें तो आप तहकीक कर सकते हैं। नहायत ही मुहिम मौक़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ने सर्विस फराहम की है और उसके साथ साथ अच्छे प्रोग्राम्स और उसके साथ साथ यकीनन तरबियती और दीनी और हर एतबार से जो भी मौज़ूआत है उस उन्वान से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन की है। तो ये इस उन्वान से मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान जो है उस जगहों पे जो है वो मदद करता है जो उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ हो, यानी उसमें कोई शक शुबा ना हो। तो इस उन्वान से आपसे ये दरख्वास्त की जाती है और इसके पीछे भी यकीनन यही है कि ये इदारा अगर यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी शख्स है जो आपसे आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा है, तो उससे मुराद नहीं है कि वो कोई शख्सन अपने लिए कर रहा है, बल्कि इस उन्वान से है। जी तौकीर हैदर मैनचेस्टर यूके से हमारे साथ कॉल पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सर कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? शुक्र है ज़ात की जिसने हमें रिज़्क़ दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। मैं अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी खिदमत में खुशामदीद कहता हूँ और इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है। लंदन से आपकी, मैनचेस्टर से आपकी आवाज़ जो है वो शहर मुक़द्दस से करबला तक पहुँची है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप मौला की खिदमत में सलाम करें और अगर कोई दुआ करना चाहे फिर मुख्तसरन इंशाल्लाह मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सर आँखों पे आपने मुझे वेलकम कहा, सर आँखों पर आपने मुझे वेलकम इसलिए भी कहा कि मैं ज़ियारत पढ़ सकूँ, सलाम कर सकूँ। बहुत मेहरबानी आपकी। जी जी सर, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम लखते जिगर फातिमतुल ज़हरा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम लखते जिगर अमीर अल मोमिनीन अली वली वसी रसूलुल्लाह खलीफातु बिला फसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बीबी फातिमतुल ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम मौला गाज़ी अब्बास सलमदार, अस्सलाम वालेकुम महाफ़िज़े अहले बैत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम शहीदान करबला, अस्सलाम वालेकुम असीरान करबला। मेरी अल्लाह दुआ कबूल करे। बहुत मेहरबानी आपकी। मौला आपको सलामत रखे सर। और माशाल्लाह जिस उन्वान से अकीदत के साथ आपकी आवाज़ मैनचेस्टर से शहर मुक़द्दस से करबला तक पहुँची। अच्छा, मैं सर आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी वहाँ पर आप लोग देखते हैं प्रोग्राम्स? जी हाँ बिल्कुल सर। मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी है और जैसे मुख्तलिफ एंड्रॉयड बॉक्सेस वगैरह में और इस तरह। और देखो तो मैं तो खुद इस मामले में थोड़ा सा माहिर हूँ। मैं मतलब लोगों को भी गाइड करता हूँ देखने के लिए चीज़ों को। माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा, वहाँ पे माशाल्लाह मोमिनीन, इस हवाले से हमें खुशी होती है कि ज़ाहिर है वहाँ भी ये आवाज़ जो है वो पहुँच रही है। अच्छा, मैं सर आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि हमारे ये प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर, इसमें मोमिनीन हवाइज की कबूलियत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए और ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के एज अ स्पॉन्सर जितना कर सकते हैं हेल्प करते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ इस मुहिम में शामिल होना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं था भी पहले और इंशाल्लाह मैं हूँगा। इत्तेफाक की किबला बात यह है कि मेरे एक सर पे चोट आती है तो मुझे मिर्गी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं पहले स्पॉन्सर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए और इंशाल्लाह उल अजीज आपके लिए बाय द वे ऐसा मामलात हुए किबला कि उस मिर्गी की वजह से मेरा घर समझे मुझसे छूट गया। बहुत अजीब एक मसला हुआ है, तो मैं उसको इम्तिहान समझूंगा अपनी लाइफ का। क्योंकि करबला में भी बड़ी बड़ी हिस्सों ने इम्तिहान दिए थे, हम उनके खाक हैं उनके सामने, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक इम्तिहान है इंसान के। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मौला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह आप खाके शिफा को जो है वो ज़रूर
इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है यकीनन करबला में भी आपके लिए दुआ गो है। इंशाल्लाह मौला आपको सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। जो नीयत आपने नज़र की है ये भी बड़ी बात है। और मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि ये जो नीयत आपने की है, जो भी आपके दिल में है, किस मासूम के साथ या शुहदाए करबला में किसके साथ इस नज़र को आप निस्बत देना चाहेंगे? सर हकीकत ये जाने कि इतने अजीम शुहदा हैं, एक मासूम बच्चे से लेके एक, मैं किस किस का नाम लूं तो, लेकिन मैं खास तौर पे नाम लेना चाहूंगा उस उम्मुल बमीनीन मदर का, माँ का, जिसने इन बच्चों को भी पाला, अल्लाह अल्लाह, और अपनी उस लाल को भी पाला और उसको हदायत दी, तरबियत दी, जिसके आज लोग झुकते हैं और जिसको सर सलाम करते हैं। दूर दूर से लोग रो रो के दवाई देते हैं, या मौला गाजी अब्बास, या मौला गाजी अब्बास। तो मैं तो ये माशाल्लाह मैं सबका नाम तो मैंने सबका नाम ले दिया, लेकिन खुसूसन मैं बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह उस माँ का मेरा मतलब समझ गया हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी 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 जी, बेशक बेशक। मौला सलामत रखे आपको। आपकी आपने नज़र भी की है, मौला को सलाम भी किया, दुआ भी आपके लिए किया। और यकीनन जितनी भी हमारे सामाईन और नाजरीन हैं उन्होंने भी यकीनन इलाही आमीन का होगा। आपसे सर आखिरी गुजारिश ये है कि अपने अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों के साथ, मोमिनीन के साथ भी हमारा नंबर शेयर कीजिए, एक पैगाम के साथ के ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। और यकीनन जो मोमिनीन भी यहाँ पर आएंगे उसमें आप भी सवाब के मुस्तहक है इंशाअल्लाह किबला। मैंने वैसे ऑलरेडी नंबर ग्रुप्स में पाकिस्तान में भी शेयर किए हैं, यहाँ पे भी किए हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, तो दूसरा ये कि मैं एक दफा ज़ियारत कर चुका हूँ, लेकिन मैं अरबाइन में आना चाहता हूँ, जो वॉक करके जाना चाहता हूँ। वो मेरी दिली ख्वाहिश है कि तकरीबन 60 साल का मैं हूँ, तकरीबन 60 साल का हूँ मैं। मौला जिंदगी दराज तो मैं इंशाल्लाह वो करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह मौला सलामत रखे आपको। मैं खुद कांटेक्ट करूंगा इस अपना टीम से, और मैं खुद एक डायरेक्ट डेबिट सेट करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हकीकत बता रहा हूँ। नहीं कोई मसला नहीं, आपने नियत कर लिया ना सर, ये हमारे लिए तो ये बहुत है। और आपके खुलूस के साथ बस आप जो है वो अपने अजीज अकारिब को भी इस सिलसिले में शामिल कर दीजिएगा, जो भी आपसे हो सके, और उसमें इंशाल्लाह सवाब में आप भी शरीक होंगे। मौला सलामत रखे आप, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखे। बड़ी मेहरबानी। सलाम भैया, आप सबको भी सलाम, आपको आपकी टीम का पूरी को सलाम। आप जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, जिस तरह से रेगुलर मैं हर रोज देखता हूँ, कई घंटे देखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब कि रिप्ले भी देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह एक का जिस तरह से लोग अदाओं से अपनी दुआएं मांगते हैं, वो जल्द राजी हो जाने वाला खुदा कितनी दुआएं कबूल करता है। बेशक बेशक, ठीक है ना किबला? बेशक। मौला आपको सलामत रखे, आपके लिए और आपकी जो नेक नियति है आपकी, मौला आपको शिफायाबी नसीब फरमाए बहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शुक्रिया। कॉल करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रगुजार है मौला के फरमान। शुक्रिया जी। माशाल्लाह तौकीर हैदर साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने भी मोहब्बतों का इजहार भी किया, और साथ साथ में नज़र न्याज में भी इन्होंने हद मकदूर इनकी नीयत है कि इंशाल्लाह शिरकत कर सके, और दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, अहबाब के साथ हमारे नंबर को शेयर करने का भी इन्होंने वादा किया माशाल्लाह। और आप तमाम मोमिनीन भी, आपसे भी गुजारिश है कि ज़रूर ज़रूर हमारे नंबर को जो स्क्रीन पे मौजूद है 00964772991144, इस पे इसको आपने शेयर करना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी भी मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे उसके सवाब में आप भी शरीक होंगे। और सवाब को और नेकी को छोटा न समझिए, बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई शख्स, आप किसी के बाक़ियात सालिहात में शरीक हो जाए, कोई नज़र कर ले उसमें आप शरीक हो जाए, और कोई जो है, जैसे मैंने इस भाई से कहा, उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा इस टाइम जो है काफ़ी परेशान थे बेचारे, और उनके लिए दुआ भी की है, और उम्मीदवार है कि मौला उनको ज़रूर शिफायाबी नसीब फरमाएंगे। ये खालिस अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए। जी आसिफ हुसैन साहब गुजरात इंडिया से हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम व जी, रहमतुल्लाह व कैसे हैं बरकातुहू। आप? खैरियत से हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह मौला सलामत रखे अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आपकी आवाज़ जी सर। इंडिया से करबला मौला तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो सलाम करें अपने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और अगर कोई दुआ भी करना चाहे बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाह। रोज़े सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपके सामने है। जी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल मुरसलीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुल नासिर साइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या मौला व इब्न मौला, अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल रहमान, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैहि, अस्सलामु अलैकुम या मौला साहिब अलअस्र ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या तारिकल कुरआन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मौला हर मुश्किल आसान कर, हर मोमिन की हर मुश्किल आसान कर, हर बेरोजगार को रोजी अता फरमा, हर किसी की मुश्किल आसान कर, हर किसी की दुआएं कबूल फरमा, चलते जर हर मोमिन को करबला मौला की ज़ियारत नसीब कबूल फरमा। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि मौला नसीब फरमाए आपकी आवाज़ हिंदुस्तान गुजरात से जो है वो शहर मुक़द्दस करबला तक पहुँची है, और माशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे। मैं अपने प्रोग्राम के उन्वान से भी मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे ये प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया से पेश कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम में बहुत सारे मोमिनीन कॉल्स करते हैं अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए और अपने बच्चों की कामयाबी के लिए। खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ हेल्प की नीयत से एक नज़र करते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी हस्ब तौफीक जितना आप कर सकते हैं इंशाल्लाह इस मुहिम में शामिल होना चाहेंगे आप इस मिशन में? जी साहब, मुझे मैसेज भी आया था, मुझे कॉल भी आया था, और मुझे अकाउंट नंबर भी दिया गया था, और मैं बताया भी था कि मैं करूंगा। मेरे पास जो अकाउंट नंबर भी है, सब कुछ है। मैं करने के लिए कोशिश किया, मगर मैं जितना अमाउंट दे सकता हूँ वो उतना पेड नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा, तो कम से कम आप अपने वहां से ऐसे कुछ कीजिए कि जो भी यहाँ पे दुआ सलाम कर रहा है वो अपने और से जो भी नजर देना चाह रहा है वो आप तक पहुंचे, चाहे कुछ भी दे पाए। जी 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 जी, एक बराबर तो नहीं दे पाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़रूर इसका तज़किरा करेंगे कि जो वो तरीका है उसमें कम से कम अमाउंट रखी जाए जितना भी मोमिनीन दे सके। माशाल्लाह, आपने बहरहाल कोशिश की है। ये भी कुछ भी दे सकता है। देखो साहब, ऐसा नहीं है सब एक बराबर दे पाएगा। हाँ, मौला सबको रोजी इतना अता फरमा के आप जितना चाहो इतना दे पाए, मगर सब तो एक बराबर नहीं है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। तो आप हमारे ऑलरेडी स्पॉन्सर भी है। मैं इंशाल्लाह आपके इस पैगाम को पहुंचाऊंगा, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप अपने नजराने को ताकि आसानी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए रवाना कर सके। मौला सलामत रखे आपको। और आपसे एक गुजारिश और भी है मिर्ज़ा साहब, आपसे एक गुजारिश और भी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने दोस्त अहबाब और जो भी आपके फैमिली लोग हैं या मोमिनीन हैं उनके साथ हमारे नंबर को जो आपके मोबाइल में महफूज है उसको शेयर कर दीजिएगा किसी पैगाम के साथ, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन का ये सिलसिला, ज़्यादा मोमिनीन यहाँ पहुँच सके और कॉल कर सके, और आप भी इस सवाब में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। पक्का, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रगुजार है। और खुद भी कॉल करते रहिए और मौला की खिदमत में सलाम पेश करते रहिए। शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ साहब थे, मिर्ज़ा आसिफ हुसैन, गुजरात इंडिया से, माशाल्लाह। और इन्होंने बहरहाल इस उन्वान से कि अब इंसान जो है एक तरीके से नीयत कर लेता है, और नीयत में उसकी नीयत ये होती है कि जितना भी इंसान कर सके, जैसे आप सुनते रहते हैं कि हम यही अर्ज़ करते हैं कि जितना भी इंसान कर सके, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तादाद, कोई बहुत बड़ी अमाउंट हो, कोई बहुत बड़े मकदार में वो हो, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इंसान नीयत कर रहा है, नीयत चूँकि आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है, यानी नीयत के ज़रिए से आमाल कबूल होते हैं। तो आप तमाम मोमिनीन, चाहे वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान या दीगर
ممالک میں جو بھی اردو سمجھنے والے ہیں، آپ نے نیک نیتی کی ہے، اور اس لسٹ میں جو کہ 14,000 کا لسٹ ہے، اس میں آپ نے اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کا مقام ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی یہ سعادت کا مقام ہے کہ اس مشن الہی میں، اس مہم میں کہ جو سید شہداء علیہ السلام سے مربوط ہے، اس میں آپ نے بھی اپنے مالی امداد اور جتنا آپ کر سکتے تھے بہرحال وہ آپ نے کی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اگر ہم یعنی ایک طرف سے اگر انسان دیکھیں، یہ میں کچھ جذباتی جملے نہیں ہیں، واقعاً میرے دل کے جملے ہیں کہ انسان اگر راہ سید شہداء علیہ السلام میں اگر ہم 1400 سال پہلے ہوتے، اور یقیناً یہ واقعہ ہے کربلا سن 61 ہجری، تو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو ہے وہ کوشش کرتے کہ سید شہداء علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کم از کم اپنی قربانی دے سکے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ اور اس کے بعد جو آزاداری آج یہ چل رہی ہے، اس آزاداری کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس زمانے میں تو نہیں پہنچے، لیکن کم از کم وہ رونے والوں میں ہم شامل ہیں۔ اور اسی میں یہی چیز ہے کہ اگر انسان ایک مشن ہے، اور وہ الہی مشن سید شہداء علیہ السلام کا مشن، اگر اس میں کوئی ایک شخص اپنی مالی امداد کے ذریعے سے یا دوسرے، جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے، اگر اس ذریعے سے کوئی شخص جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے تو یہ بھی یقیناً اسی میں شامل ہے۔ چونکہ اصل چیز یہ ہے کہ آج کے اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو مخالفین ہیں، جو دین خدا کے مقابلے میں آ چکے ہیں اور انہوں نے تلوار نکالی ہے، تو آپ اگر دیکھیں گے تو وہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ ان کے پاس جو دین ہے وہ دین سے نہ دین بہتر ہے، جو ان کے پاس دین ہے، لیکن اس نہ دین اور اس کم ایسا دین ہے کہ جس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر کوئی شخص اس کو جان لے کہ یہ کیا، ان کے تعلیمات کیا ہے، لوگوں کو قتل و غارت کرنا اور لوگوں کے مال لوٹنا اور بہت ساری اور چیزیں، ان کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ جو ان کے دین کے امام ہوا کرتے تھے انہوں نے اتنے زیادہ کام کیے ہیں نا، جو تاریخوں میں یعنی طرفین کی کتب میں وہ ساری کی ساری چیزیں، مخصوصاً جو بنی امیہ ہے، وہ ان کے کارنامے تو کسی سے چھپے ہی نہیں ہیں نا، کسی سے بھی چھپے نہیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لیکن پھر بھی ان کی جو وہ اس کے ساتھ، چونکہ ان کا مقصد دین تو ہے نہیں، اٹیک جو کرتے ہیں وہ سید شہداء علیہ السلام کے شعائر حسینیہ کے اوپر ان کا اٹیک رہتا ہے۔ تو اس عنوان سے آپ غور کیجئے کہ کس قدر یہ ارزشمند ہے اور کس قدر جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ امتیاز حسین خیرپور میرٹھ سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر؟ مولا حسین کا کرم، مولا سلامت رکھے آپ کو، اور خصوصی آپ کے لیے دعا گو ہے۔ آپ مولا کی خدمت میں سلام کیجیے، آپ کی آواز خیرپور میرٹھ سے کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے، سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے مختصراً میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا۔ مولا شہزادی علی اکبر کے صدقے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں مولا مجھ پہ نظر کرم کرے اور میری دعائیں قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اچھا، میں یہ پروگرام کا سلسلہ بھی ہمارا ہے، اور ماشاءاللہ آپ ہمارے باقاعدہ ناظرین میں سے ہیں، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس پروگرام میں جو ہے وہ اسپانسر کی حیثیت سے شرکت کی ہے یا ابھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ؟ جی میں نے کی ہے علامہ صاحب۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اچھا، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ شیئر بھی کیے ہوں گے، آپ نمبر کو ہمارا شیئر کرتے رہتے ہیں، مزید بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ افراد جو ہے اس پروگرام میں آ سکے، انشاءاللہ العزیز آپ بھی ثواب میں شریک ہوں گے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، شکریہ۔ جی جی علامہ صاحب، مولا آپ کو خوش رکھے، آپ بھی اپنی دعا میں یاد رکھے مولا کی طرف پہ علامہ صاحب۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، شکر گزار ہے، شکریہ آپ کا، شکریہ، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ، امتیاز حسین خاص خیلی صاحب ہمارے ساتھ خیرپور میرٹھ سے موجود تھے، اور ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ باقاعدہ ناظرین بعض
हजरात जो हमारे याद में ये चीज़ें हैं और हमारे जहन में जो शख्सियात रहते हैं, चूँकि बाज़ मोमिनीन कई सालों का जो रिश्ता है उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ, और खुसूसी तौर पे बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो इस टीवी के साथ उनकी आशनाई नहीं होगी। यानी कम से कम इंसान ने ये ज़रूर देखा होगा, जो खुसूसन जो ज़ायरीन आते हैं उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के कवरेज को देखा होगा, या जहाँ कहीं पर भी सोशल मीडिया में जाने अनजाने में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई ना कोई लाइव या कोई ना कोई प्रोडक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर देखा ही होगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी, ज़वार परवेज़ साहब जो है कराची से हमारे साथ कॉल पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से इंशाल्लाह? आपकी दुआएं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का करम है, दुआएं आप। मौला आपको सलामत रखे। और इस वक्त आपकी आवाज़ कराची से शहर मुक़द्दस करबला तक पहुंची है, और आपको अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में खुशामदीद कहता हूं मैं। मौला आपको सलामत रखे, इमाम सलामत ज़माना आपको तूल उम्र अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको भी अपने ज़मान में मैं चाहूँगा, चूँकि इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में है, और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को आप मोबाइल के ज़रिए से या टीवी के ज़रिए से देख सकते हैं, रोज़े हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सामने है। सलाम अर्ज़ कीजिएगा सबसे पहले। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मेरे मजलूम इमाम, मेरी जद आप पे कुर्बान मेरे मौला, मेरी बस ये इल्तमास है, मैं आपका ज़ाहिर हूँ, मुझे फिर अपने बच्चों समेत दोबारा मौला अपनी ज़ियारत के लिए बुलाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको, और अल्लाह आपके इस खुलूस को कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह धरती को शादो आबाद रखे, जिसमें मेरे मौला के ज़ाहिर और मेरे मौला की कब्र मौला। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपको अपनी फैमिली समेत करबला। मेरे पापा मौला इमाम, मैं खुश नसीब हूँ, इस वक्त मेरी आवाज आपके हरम में गूंज रही। बेशक, बस मौला और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मेरे बच्चों को अपनी ज़ियारत के लिए बुला दे, और उस वक्त तक मुझे मौला मौत न दे जब तक मैं आपकी ज़ियारत न कर लूँ मेरे मौला, मेरे मज़लूम मौला। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मौला सलामत रखे, अल्लाह आपको अपने फैमिली समेत करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ, खिदमत में अर्ज़ यह है कि इस प्रोग्राम में चूँकि बहुत सारे मोमिनीन कॉल्स करते हैं दुआओं की कबूलियत के लिए, हवाइज की कबूलियत के लिए, मरीज़ों की शफायाबी के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ मदद करने की हैसियत से नज़र करते हैं। हस्ब तौफीक जितना कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह जरूर मुझे अपना नंबर अपने मौला के लिए जरूर इंशाल्लाह हमारे ऑपरेटर आपको पूरी डिटेल बता देंगे, बड़ी आसानी से इंशाल्लाह अज़ीज़ आप कर सकेंगे। और मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ, जो नज़र का इरादा आपने किया है शुहदाए करबला में या अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम में, किस इमाम के साथ या किस शहीद के साथ आप इसको निस्बत देना चाहेंगे ताकि इसके ऊपर कबूलियत की मोहर लग सके इंशाल्लाह? मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नजर करूंगा, जो भी मेरी तौफीक। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मौला सलामत रखे आपको, आपकी खूबसूरत आवाज़ करबला तक पहुंची। और आपसे मैं एक गुजारिश आखिरी ये भी करना चाहूँगा कि अपने अजीज़ अकारिब रिश्तेदार 14 अफराद के साथ कम अज़ कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का जो नंबर है उसको शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन तशरीफ़ ला सके इंशाअल्लाह, और आप भी उसमें सवाब में शरीक होंगे। शुक्रिया आपका, मौला सलामत रखे आपको। शुक्रगुजार है, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी माशाअल्लाह, ज़वार परवेज़ साहब कराची से इन्होंने कॉल की और मौला हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया, और
नज़र का अहतमाम किया। यकीनन ये इसमें कोई शक नहीं है और बिला तरदीद आप शक भी न किया करें कि अगर आप किसी अपने हाजत के लिए, हाजत की कबूलियत के लिए अगर आप नज़र करते हैं तो इसमें शक न किया करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआएं जो है वो ज़रूर को कबूल होगी और आपके हवाए जो है वो यकीनन बरआर्दा होंगे। और उसके साथ साथ अगर आप अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से स्पॉन्सर बन रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के, हर महीने के एतबार से भी कर सकते हैं। मसलन आप हर महीना इतने पैसे या जो भी आपके पास वो है जितनी मिकदार में आप जो है वो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मतलब कोई एक तारीख़ अपने लिए आप रखें कि इस तारीख़ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इतना कुछ कर सकते हैं, तो वो भी आप करें। और अपने अगर किसी के वालिदैन जो है वो मरहूम हो चुके हैं, दुनिया से गए हैं, तो यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत माहौल है, बड़ा नूरानी माहौल है। करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम दे रहा है। इसमें यकीनन आपके मरहूम वालिदैन, आबा व अजदाद वहाँ तक भी सवाब पहुँचता रहेगा। और अगर आप अपने बच्चों की कामयाबी के लिए इसको इंश्योरेंस कह सकते हैं, आप इसको बीमा कह सकते हैं। हम दुनियावी इदारों के ऊपर इस कदर जो है इत्मीनान रखते हैं, हालांकि हमें कल का कोई पता भी नहीं है कि कल कौन से हालात यहाँ पर रुनुमा होने हैं, कौन सी बीमारी आनी है, कौन सी जो है हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि इंसान, ये दुनिया जो है कुर्रा अर्जिया जो है, कुर्रा अर्ज, ये शायद हो सकता है कि असलन रहने के काबिल ही ना हो, असलन रहने ही के काबिल ना हो। यानी कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाए कि इंसान शायद हो सकता है इस पर रह, या आप जिस मंतके में हैं उस मंतके में इंसान रहने के काबिल ना हो, यानी इंसानी ज़िंदगी वहाँ पर मुतवक्किफ़ हो जाए, ये हो सकता है ना। और हुआ है ऐसे दुनिया में, आप जाके सर्च कर ले गूगल पे कि ऐसे ऐसे मनातिक थी जहाँ पर पूरे पूरे शहरें बसा करती थी। एक दफ़ा कुछ ऐसा हो गया कि वो शहरें तहस नहस हो गई, ख़त्म हो गई, सारा कुछ ख़त्म। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर हम उसके लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल वो बीमा और इंश्योरेंस करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, इत्मीनान है कि चलो इंशाल्लाह हो जाएगा, तो ये इलाही मिशन है सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का, तो इसमें आप क्या नहीं कर सकते? यकीनन इंसान को करना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आप इत्मीनान रखें। आपकी जो है ऐसी ऐसी हाजात और ऐसी ऐसी बरक़ात आप देखेंगे कि जिसको आपने पहले नहीं देखा होगा। यकीनन अगर इंसान वारिद हो जाए किसी भी उन्वान से तो उसके बड़े असरात और बड़े बरक़ात देखते हैं इंसान। एक शख्स मसलन पहले जो है वो नमाज उस पाबंदी के साथ नहीं पढ़ता और एक दफ़ा नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया तो देखा कि उसकी ज़िंदगी में अजीब व गरीब बरक़ात आने लगे। फिर एक स्टेप आगे गया तो उस शख्स ने मसलन नमाज को जो है अव्वल वक्त पढ़ना शुरू कर दिया, बरक़ात मज़ीद बढ़ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी के। अगर इंसान को अल्लाह जो है वो तौफ़ीक दे दे कि उसके साथ साथ वाजिब नमाज के साथ साथ जो नाफला है वो नाफला भी पढ़ना शुरू कर दे, मज़ीद इंसान की ज़िंदगी में बरक़ात आ जाते हैं। नमाज शब को मसलन पढ़ना शुरू कर दिया या ऐसा कुछ कर लिया कि मज़ीद जो है उसने अपने जो नमाज़ें हैं उसमें मज़ीद खुशू और खुशू का मुज़ाहरा शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे इसमें बिला शक बिला रैब अगर इंसान किसी खैर की काम की तरफ चला जाए तो वहाँ पर इंसान बरक़ात को महसूस कर सकता है। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त भी इसी तरीके से है। अगर कोई शख्स यहाँ पर वारिद हो गया, किसी शख्स ने जो है वो ज़ियारत के ज़रिए से सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के पास नज़दीक किया, कोई शख्स जो है उसने सलाम के ज़रिए से उसने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर दिया कि मसलन मैं जो है सुबह 5 बजे बाद नमाज सुबह मसलन कह रहा हूँ सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करूँगा और 2 रकत नमाज पढ़ लिया करूँगा। आप देखेंगे कि उसके ज़िंदगी में कौन से बरक़ात जो है वो आ रहे हैं, उसकी शख्सियत मुकम्मल चेंज हो जाती है। नजमुल हसन भट्टी साहब मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? जी अल्लाह का शुक्र है, अब जरा तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए दुआएं की थी माशाल्लाह। करबला वो मकाम है कि जहाँ पर दुआएं जो है वो कबूल होती है, कब्र सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के पास। मौला आपको सलामत रखे और आपके लिए हमेशा दुआएं करते रहेंगे। आपकी आवाज़ मुल्तान से करबला तक जो है वो पहुँची, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। सलाम पेश कीजिए मौला की खिदमत में और अगर कोई दुआ करना चाहे बिस्मिल्लाह फरमाएं। तो बिल्कुल जी, मैं तो सलाम
मेरा सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर और 72 शहदा पर, खास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और जो भी शहदाए करबला हैं उन सबको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से सलाम। बाकी मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके जो भी हमारे जायज ख्वाहिशात हैं मौला कबूल फरमाए, और जो भी है हमारे दिल में, खास तौर पर मैं बीमार हूँ, जरा मेरी हमशीरा भी बीमार है, मौला मुश्किल कुशा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम से खाक के सदके हमें सेहत व कामला अता फरमाए और अपनी इस जन्नत की जियारत करवाए मरने से पहले। बस ये ख्वाहिश है मौला इलाही आमीन। कि आप हमें बुला लें और सेहत के साथ बुला लें, ताकि हम भी आए और पूरे इराक में जो भी ज़ियारत है पूरी ज़ियारत करें, ज़ियारत मुक़द्दसा सारा। ये दिल बहुत ही बेचैन है मौला के पास आने को। इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह आप मौला भी आपको दुआ कर सलामत रहे हैं रखे। कि मौला माशाल्लाह कबूल मौला फरमाए। सलामत ये रखे। हमारी इलाही दुआ आमीन, यहीं इलाही से आमीन। जी। आप माशाल्लाह हमारे स्पॉन्सर भी हैं और आपने पहले से नज़र न्याज कर लिया था, और आपसे ये गुजारिश है कि हमारा नंबर आपके मोबाइल में महफूज है, आप अपने अजीज़ अकारिब दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, ग्रुप्स में शेयर करते रहें, या जहाँ पर भी आप मुनासिब समझते हैं वहाँ पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन आ सके और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी सवाब में शामिल होते रहेंगे, ये जहन में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक जरा मेरी गुजारिश है, जी जी कोई आपके पास ऐसे जो बड़े, जरा मैं बिल्कुल चल नहीं सकता, मैंने एक बैटरी वाली व्हील चेयर लेनी है जो 70-75 हजार रुपए की आती है। सही सही। तो कोई भी अगर मोमिन हैं माशाल्लाह अच्छे तगड़े, मतलब खुदा ने उनको मौला ने दिया हुआ है, जी जी, तो बहक के मोहम्मद आले मोहम्मद जो भी खुम्स तो नहीं, ज़कात, रमजान शरीफ भी आ रहा है, ज़कात वगैरह जो भी है, ताकि मैं ये ले सको और अपना कुछ इंशाअल्लाह रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकूं। इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ आपसे मोमिनीन ये तक गुजारिश पहुंची है, आपकी आवाज़ मोमिनीन तक पहुंची है। अगर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई भी इसमें इस हवाले से जो है आपकी मदद करना चाहे, ज़रूर इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी नंबर पे इंशाअल्लाह राब्ता करेंगे, आपको इतला दी जाएगी। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह आपको सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए। शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया जो आप इतनी दूर बैठ के याद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी सलाम। इलाही आमीन, इलाही आमीन। शुक्रिया शुक्रिया आपकी दुआओं का, सलामत रहें। माशाल्लाह नजमुल हसन भट्टी साहब मुल्तान से हमारे साथ थे, और माशाल्लाह जितनी भी मोमिनीन हैं, बहरहाल देखें ज़रूरी नहीं है कि इंसान उसके पास दुनिया के सारे वसाइल मौजूद हो, और ये हो भी नहीं सकता, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। मैंने बहुत सारे मोमिनीन को देखा जिनके पास माली वसाइल तो थे, लेकिन सेहत के एतबार से काफ़ी कमज़ोर थे। बाज़ मोमिनीन को देखा जिनके पास सेहत भी है, माल भी है, उनके पास आल और औलाद नहीं है। बाज़ ऐसे लोग भी देखें, अल्लाह माफ़ी दे, ये जो कैटेगरी है ये बड़ी अजीब कैटेगरी है। सब कुछ है, इज़्ज़त नहीं है। ये बड़ी अजीब कैटेगरी मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसके पास ऐसे लोग हमने देखे, उनके पास सब कुछ है नेमत इलाहिया में से, लेकिन जो इज़्ज़त है ना वो नहीं है उसके पास, इज़्ज़त खो चुका है। ये सबसे ज़्यादा पुरशोभ बात यही है। तो अल्लाह ऐसा आप रखें कि कभी किसी चीज़ की गुस्सा ना किया करें, फ़लाँ शख्स के पास ऐसा है मेरे पास नहीं है, ऐसा ना कहा करें। आप अल्लाह से दुआ करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहीं दुआएं करें जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से हमारे पास पहुँची है। सहीफ़े सजादिया की दुआएं हैं, आप पढ़ा करें। वो उसमें चूँकि जो आपकी दिक्कत है ना, आपकी दिक्कत उतनी नहीं होती, हमारी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो मासूम है उनकी दिक्कत हर चीज़ पे होती है। जामे दुआ होती है, जामे दुआ। तो आप जो मासूम से मनकूल दुआएं हैं उसको पढ़ा करें। खैर दुनिया और खैर आखिरा उसी में है बस। तो आप ये ना सोचा करें कि मेरे पास मसलन इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे मोमिनीन कि उनके पास जो है वो हमारे पास तो है ही नहीं, अब इसमें से वो लोग कॉल करेंगे जिनके पास होगा। आप आके नियत कर लें, सिर्फ नियत कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नियत का भी आपको, बल्कि रिवायत में मौजूद है कि इंसान अगर किसी चीज़ की नियत कर लेता है अल्लाह उसको सवाब दे देता है। मैंने ख़ुद रिवायत पढ़ी है।
अगर इंसान किसी नेकी की नीयत कर देता है, अल्लाह फरिश्तों को कह देता है मेरे इस बंदे ने नीयत की है, सवाब इसको दे दीजिए, उसके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता है काम से पहले। ये अल्लाह है, और अल्लाह इस किस्म का हमारा माबूद है कि अगर हम सिर्फ नीयत कर लेते हैं तो नीयत का सवाब और गुनाह के लिए जब एक शख्स इरादा कर लेता है तो अल्लाह उस वक्त तक जो है वो सारे खामोशी होती है जब तक वो शख्स नऊज़ु बिल्लाह उस गुनाह का मुर्तकिब ना हो जाए। जब तक वो गुनाह न करें उसके आमाल में कुछ नहीं लिखा जाता, इंतज़ार किया जाता है। सैयद सीमा हैदर साहिबा कराची से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह आपकी आवाज़ शहर कराची से शहर मुक़द्दस करबला तक पहुंची है, और आप माशाल्लाह हमारी जो है वो ऑलरेडी स्पॉन्सर भी है, और माशाल्लाह आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने दूसरे अजीज़ अकारिब और दोस्तों से भी ज़रूर इंशाल्लाह हमारे नंबर को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इंशाल्लाह तशरीफ़ ला सके, आप भी सवाब में शरीक होंगे। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में है, सलाम का नजराना अपने मौला की खिदमत में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीम, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदातिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूं अपने पाक परवरदिगार आलम का कि अल्लाह ने आज मेरे फिर इतनी ज़्यादा नसीब की। अल्लाह तेरे लाख लाख एहसान है, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। फिर मैं दुआ कहूँ टीम कैबरट फोर्ट यू वालों के लिए कि जिनकी वजह से जिनकी काविशें हैं, ये इनकी मेहनत है, पूरे यानी ग्रुप मेंबर जो भी हैं सबके दुआ कहूँ परवरदिगार उनको अजर अज़ीम अता करना। फिर मैं दुआ कहूँ अपने वालिदैन के लिए, अपने शोहर के लिए, परवरदिगार आलम उनको जन्नतुल फिरदौस में एक आला मकाम अता करना, और वहाँ के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। फिर मैं दुआ कहूँ अपने चारों बच्चों के लिए अल्लाह ने कामयाबी अता करना, और उनको दुश्मनों की शर से बचाना, और उनके नसीब बहुत बुलंद करना, अगर मेरे साथ करबला आने की तौफीक फरमाना। और फिर मैं दुआ कहूँ मोमिन मोमिनात के लिए जिन्होंने मुझसे दुआओं के लिए कहा, परवरदिगार मौला हुसैन वाला अब्बास सिक्की में भी तमाम दुआएं हाजिर पूरी करना। और मेरी खास एक दुआ है आखिर में कि परवरदिगारा तू ना मौला मांगे ज़माने की ज़हूर में ताजील फरमा मौला हुसैन वाला अब्बास के सदक़े में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। और इस वक्त अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को देख रहे थे तो आपका नाम भी मौजूद था स्क्रीन पे, और रोज़ा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को भी आप ज़ियारत कर सकती थी। मौला सलामत रखे आपको। आपसे बस गुजारिश यही है कि इंशाल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के नंबर को अपने दोस्त अजीज़ और अकारिब के साथ शेयर कीजिए ताकि इंशाल्लाह तादाद हमारे पास बढ़ सके। शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम शरीफ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए। सलामत रहें। शुक्रिया जी माशाल्लाह। और हमारे वो मोमिनीन जो पहले से स्पॉन्सर कर चुके हैं उनके लिए भी ये कहा जा सकता है कि आप अपना हिसाब रख सकते हैं, अगर करना चाहें आप हर महीने जो है वो अपना हिसाब रख सकते हैं। 2 महीनों में एक दफ़ा या 3 महीनों में एक दफ़ा आप रख सकते हैं अपना हिसाब। ज़रूरी नहीं है कि इंसान ने एक दफ़ा कोई एक नेक काम कर लिया तो वो बरी ज़िम्मा हो गया, मज़ीद भी आप कर सकते हैं, और यकीनन आपको सवाब और अजर जो है वो मिलता रहेगा इस कार खैर के बदले में कि जिसका आपने कम से कम इरादा कर लिया। अच्छा, मैं इरादे के उन्वान से कह रहा था कि अगर इंसान कोई भी नेक काम करने के लिए यकीनन इरादे की ज़रूरत तो है, और मुहकम इरादे की ज़रूरत है, और इरादा ऐसा हो इंसान का कि उससे जो है इंसान उस काम को अंजाम दे सके। अगर कोई नेक काम है तो उसमें इंसान मजबूती के साथ इरादा करें, और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल करके देखें। बाज़ लोग जो है वो जी मुअज़्ज़म हुसैन साहब फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कब आया था 2024 में, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और तब मुझे पता नहीं था आपका चैनल इधर है, और इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा अगले साल और आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आपके हाजिर खिदमत है। बाबुल किबला की तरफ आप आएंगे और वहाँ जो है इब्न फ़हद अल हिली का जो है रोज़ा है, उसमें गली में आप आएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप या कनावत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ज़रूर आप तशरीफ़ लाए। और माशाल्लाह आपकी आवाज़ आज भी फैसलाबाद से जो है, फैसलाबाद से करबला तक पहुँची है। कम अज़ कम यह है कि आपकी आवाज़ के ज़रिए से तो आप मौला के ज़ायर बन चुके हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मौला को सलाम कीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे एक मुख्तसर बात करूँगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अबुल फज़ल अल अब्बास, सिपाही सकीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ मुअज़्ज़म हुसैन साहब के हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे मोमिनीन कॉल करते हैं अपने हवाइज की कबूलियत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जो पूरी दुनिया में नशर व इशाअत अपने कारोबार के लिए मौला से दुआ करवानी। जी बहुत बेहतर है। आप अपने कारोबार के लिए भी ये कर सकते हैं, नज़र करते हैं मोमिनीन, आप भी इंशाल्लाह नज़र कर रहे हैं हस्ब तौफीक जितना आप कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। और आपसे एक गुजारिश ये है कि आपने जो नज़र का इरादा कर लिया है, मसला आपकी दुआ है कारोबार के लिए, तो आप जो है इस उन्वान से जो है आप माशाल्लाह चूँकि कारोबार के लिए जो है आप कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे पास मोमिनीन मौजूद है जिनके पास इतनी माली वुसअत नहीं है लेकिन कम अज़ कम अपनी हैसियत के एतबार से कर लेते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने जो नज़र का इरादा किया, किस मासूम के साथ, इमाम का नाम ले लीजिए या शुहदाए करबला में किसी का नाम ले लीजिए, ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी नज़र जो है निस्बत हो जाए उस शख्सियत से और कबूल हो जाए। किसका नाम आप लेना चाहेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे और अल्लाह आपकी इस नज़र को कबूल फरमाए। आपने बहुत अच्छा इरादा किया है। अल्लाह आपको कारोबार में कामयाबी और सक्सेस इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अता फरमाए। और आपसे एक गुजारिश ये है कि आपके पास हमारा नंबर मौजूद है, अपने हमारे नंबर को अपने अजीज़ अकारब दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन आ सके, आप भी सवाब में शरीक होंगे। इंशाल्लाह बस दुआ करिए बस हमारे लिए। जी ज़रूर, इंशाल्लाह मौला सलामत रखे। हमारे ऑपरेटर आपसे रब्ता करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको मज़ीद वजाहतें इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। सलामत रहिए, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहिए। शुक्रगुज़ार है जी माशाल्लाह। बहुत जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि बहुत से ऐसे हजरात भी है जो कादिर नहीं है उस कदर, यानी उनकी माली वुसअत उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बेशक 100 रुपया क्यों ना हो पेश कर देते हैं। असल में उस लिस्ट में अपना नाम जो लिखवाना है, आपका जो है जिससे आप मामला कर रहे हैं सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से, अपने कम माली वुसअत के बावजूद भी आप उसमें शिरकत कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और मैं तो समझता हूँ कि इंसान को ऐसे ही करना चाहिए। देखिए, जब आपके पास बहुत अच्छे हालात है तो उस अच्छे हालात में तो वैसे भी इंसान कर लेता है, उसके लिए तो थोड़े पैसे भी ही कुछ ख़ास, ज़्यादा पैसे भी उसके लिए ज़्यादा मुहिम नहीं होते। लेकिन अगर इंसान के पास जो है वो इस पोजीशन में है कि उसका अपना गुजारा हो रहा है, तो उसमें अगर इंसान जो है वो सखावत कर रहा है, तो ये अलबत्ता सखावत से मुराद कतई ये नहीं है कि इंसान जो है ख़ुद अपनी शराइत को सख्त करे, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अल्लाह ने आपको इतनी वुसअत, आप नियत करेंगे ना, अल्लाह आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसमें वुसअत अता फरमाएगा। तो मौला आप लोगों को सलामत रखे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इंसान अगर इस हवाले से कोशिश कर रहा है और आप एक जज्बे दीनिया रख रहे हैं और इस उन्वान से कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ख़त में अगर आप ख़र्च करेंगे
اس مشن میں اگر آپ خرچ کریں گے تو یقیناً آپ کو ملے گا. جس طریقے سے زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب جو ہے اس کے 10 برابر یا بعض روایت میں 70 برابر 40 برابر ملتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اگر اس میں آپ، یہ بھی ایک قسم کی زیارت ہے. جیسے ہمارے اس جی یاسمین کوثر صاحبہ ٹیکسس سے ہمارے ساتھ اس وقت نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں سب سے پہلے تو آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ ہماری باقاعدہ اسپانسر بھی ہے اور آپ سے بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا میں کہ اپنے عزیز اقارب دوستوں کے ساتھ اور مومنین تک نمبر امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا پہنچا دیجئے گا، جو کہ اسکرین پر بھی موجود ہے اور آپ کے موبائل میں بھی محفوظ ہے، تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ مزید جو ہے وہ آگے بڑھے اور انشاءاللہ العزیز اس میں آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں گی انشاءاللہ. اس وقت آپ کی آواز ٹیکسس سے کربلا تک مستقیماً پہنچ رہی ہے. سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اور اگر کوئی دعا کرنا چاہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المسلمین، السلام علیکم ابن فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابو الحوائج، السلام علیکم یا قمر بن ہاشم، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل علی محمد وعلی السلام علیکم یا صاحب اسم وسلم. اللہم عجل ولیک فرج، اللہم عجل ولیک فرج. الہی باق مولا حسین، الہی باق بی بی سیدہ، الہی باق بی بی سکینہ، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. الہی باق مولا حسین ہم سب کی بیماریاں دور فرما. الہی باق ہمارے مرحومین پر مغفرت نصیب فرما. ذوالفقار نقوی کا انتقال ہوا ہے، الہی باق مولا حسین، الہی باق مولا عباس علیہ السلام ہم جلد سے جلد بلائے، مولا جلد بلائے، اپنا درد پایا شروع پہ بلائے تو ہم پہ بلائے. جزاک اللہ خیر بھائی صاحب. اللہ آپ کو سب ٹیم والوں کو سب کو زندگی دے، کامیابی دے، خوشیاں دے انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کم از کم 14 افراد کے ساتھ مزید بھی ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکے. شکر گزار ہے آپ کے اور ہر وہ مومن جو دینی جذبے کے تحت اس پروگرام میں انہوں نے شرکت فرمائی ہے یا شرکت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی خصوصی طور پہ جو ہے وہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور مولا سب کو اپنے امان میں رکھے. آپ دیکھ رہے تھے کہ بعض ایسے مومنین ہیں جو بیچارے خود ضرورت مند ہے، لیکن خود کی ضرورت سے زیادہ سید شہداء علیہ السلام جو اس دور میں جس مشن کے تحت چل رہا ہے، یہ اس سے کئی اپنی ضرورتوں سے کئی زیادہ ضروری ہے. یہ کہا جائے گا نا، چونکہ انسان کی اپنی ضرورت تو ظاہر ہے اپنے گھر کے حد تک ہے، اور سید اور اس مشن کا جو نور اہل البیت علیہ السلام ہے یقیناً یہ اپنے ضروریات سے بالاتر ہے. یعنی انسان اپنے لیے اگر پریشان ہے تو اس کے لیے بدرجہ اولا جو ہے وہ پریشان ہونا چاہیے. اس کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ کئی سالوں سے اگر ایک میڈیا گروپ سید شہداء علیہ السلام کے لیے اپنے وقت کو جو ہے وہ وقف کر رہا ہے اور مومنین تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں مناسبات کے حوالے سے، تعلیمات اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے اور دیگر بہت ساری
جو ایکٹیویٹیز ہے، ظاہر ہے آج کے اس دور میں میڈیا کی کوئی ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی بلکہ کئی ساری جو ہے وہ مشاغل ہوتے ہیں، تو اگر ایک میڈیا گروپ اس قدر آپ کے لیے مخلص ہے کہ اس دور میں جو سب سے زیادہ مہم ترین چیز ہے تبلیغات کے لیے اور سب سے زیادہ مہم ترین چیز ہے دین کی رسائی کے لیے اور پیغام اہل البیت علیہ السلام کے لیے، وہ یقیناً میڈیا ہے، اور وہ میڈیا سے بہتر اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ اگر ایک گروپ ایسا ہے کہ جو اس حوالے سے کوشش کر رہا ہے تو مومنین کا حق بنتا ہے کہ اس گروپ کی مدد کریں اور اپنے استطاعت کے مطابق اپنے جو وہ کر سکتے ہیں اس اعتبار سے ضرور جو ہے وہ اس میں پیشہ پیش رہیں اور اس میں جو ہے وہ مدد کرے تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ مزید جو ہے آگے اس سے بہتر، یعنی ابھی جو یہ چلا ہے اس سے کئی بہتر جو ہے یہ سلسلہ چل سکے، یعنی اچھے طریقے سے چل سکے، اور یقیناً جو آج کے اس دور میں ضرورت، جو دور کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت ساری جدید چیزیں جو ہے وہ بن چکی ہے، بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی کوئی شخص وہ صرف سوشل میڈیا کے حد تک دیکھنے کے حد تک بھی ہو، وہ اس ضرورت کو محسوس کر سکتا ہے کہ کس قدر جو ہے اس دور میں ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے یقیناً آپ مومنین کی مدد بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹس رکھتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز، اور بہرحال یہ تو خیر ہم صرف اس عنوان سے کہ آپ کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہے ہیں، ورنہ مومنین یقیناً مستحضر ہے اور یقیناً مومنین جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس نقطے کی طرف ان کے توجہات مبذول ہے، یقیناً ان کو اندازہ ہے کہ آج کے اس دور میں کس قدر ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ تمام مومنین اور ہم سب جو ہے وہ یکجا ہو کر اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میڈیا گروپ کی بقا کے لیے، انشاءاللہ العزیز اس میڈیا گروپ کے بقا کے لیے ضرور بضرور اقدام کریں، اور جس طریقے سے آپ کے گھروں میں ہر روز آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو وہاں پر دیکھتے ہیں اور وہاں سے گویا کہ ایک روشندان ہے اور ایک کھڑکی ہے جو کہ شہر مقدس کربلا کی طرف کھلتی ہے، تو آپ اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ آپ اگر اس میں کسی ایسے ایک وسیلے کے تحت کہ آپ پہنچ رہے ہیں، کربلا تک آپ کی رسائی ہے، تو یہ یقیناً آپ کے لیے فخر کا مقام ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرا گھنٹہ تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور اگلا عالی مرتبت عالی جناب مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان کے باارزش اور گران قدر بیانات سے انشاءاللہ آپ لوگ مستفید ہوں گے، اور آپ نے جانا نہیں ہے بلکہ رہنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ پارٹ کو بھی ضرور ملاحظہ کیجئے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پھر سید کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر،
اور ان کے مقام کو اپنا مقام سمجھنے والوں پر جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ 26 شعبان المعظم 1447 ہجری قمری ہے اور 15 فروری 2025 عیسوی ہے، اتوار کا دن ہم نے آپ کی خدمت میں گزارا، اور اتوار کا دن آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن ہوا کرتا ہے۔ مولا کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں، اور مولا کی ذرا نوازی سے مستفید رہے۔ دن گزر جاتے ہیں، باتیں رہ جاتی ہیں، اور یہ توسل کی گھڑیاں اہل بیت علیہم السلام سے توسل، اہل بیت علیہم السلام سے مودت، اہل بیت علیہم السلام کی چاہت ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے عزت مآب مولانا سید خادم عباس حسینی صاحب آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہے تھے، اور بہترین انداز میں مومنین کو اہل بیت علیہم السلام سے وصل کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ سب کو پیش کر رہے تھے۔ اور ہماری کیفیت ایک دربان کی سی ہے امام حسین علیہ السلام کی، یعنی ہم سب بھی خادم اہل بیت علیہم السلام ہیں، آپ سب کی خواہشات کو، سلام کو پہنچانے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور ہم ایک چھوٹے سے فطرس کے خادم بن جاتے ہیں، جو کہ جس کا کام یہی ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کو مولا امام حسین علیہ السلام تک پہنچانا۔ تو ہم بھی چھوٹے سے اس پروگرام کے دوران میں جب ہم آپ کو مولا سے وصل کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی فطرس سے اس کی خصوصیات طلب کر لیتے ہیں کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم زائرین اہل بیت علیہم السلام کو مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ تو لہٰذا مولا کی بارگاہ میں ہم آپ کو پیش کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم عزت مند ہیں۔ عزتیں اللہ کے لیے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اور یہ اللہ اس کے رسول اور مومنین، یہ مومنین ہر کوئی نہیں ہے، اہل بیت علیہم السلام ہیں یہ، اور ان سے ہی ہم جب متمسک ہوتے ہیں تو ان کی ذات اقدس کا صدقہ، ان کی خدمت کا صدقہ، ان کی محبت کا صدقہ، ان کی مودت کا صدقہ ہم آپ کی نگاہ میں عزت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ان سے تھوڑا سا وابستگی کی صورت میں جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ آپ ماشاءاللہ ممبر پر بیٹھنے والے کو چومنا ثواب سمجھنے لگتے ہیں، آپ ذاکر اہل بیت علیہم السلام کی عزت کو واجب سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ذرہ برابر نسبت ہے۔ اگر ہم بالکل ویسے ہی ہو جائیں جیسا وہ چاہتے ہیں تو یقیناً امام زمان علیہ السلام کے صحابیوں میں ہمارا نام جائے، اور ہم امام زمان علیہ السلام کے چاہنے والے جس طرح ہونا چاہیے اس طریقے سے بچ جائیں۔ بہرحال ہم مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ سب کو وصل کر رہے ہیں، اور پروگرام کا نام ہے 14,000 سپانسر۔ یہ QR کوڈ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو موبائل کے کیمرہ سے اسکین کریں گے تو آپ کی واٹس ایپ کال پروگرام میں مل جائے گی، اور آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ۔ اور اگر آپ نمبر سیو کرنا چاہیں یا آپ کے لیے پاسبل نہ ہو، یا QR کوڈ کو اسکین کرنے کی یا تو سافٹ ویئر وغیرہ آپ کے پاس نہ ہو یا اسکین نہ کر سکیں، تو اس صورت میں آپ یہ 009647729911424 کو اپنے موبائل میں سیو فرمائیں گے، اور یہ آپ موبائل میں جب سیو کریں گے تو واٹس ایپ میں سرچ کر کے امام حسین علیہ السلام TV4 کے پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ اب یہ کال کا دورانیہ کب سے کب تک ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مولا کو سلام پیش کرنے کے لیے لائیو پروگرام میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں تو عراقی ٹائم کے مطابق شام 8 بجے سے لے کر 10 بجے کے دوران، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران، اور بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات 11 بجے سے 1 بجے کے دوران۔ اور اگر آپ نیو یارک امریکہ کے ٹائم کے مطابق شریک ہونا چاہتے ہیں تو رات کے 12 بجے سے 2 بجے کے دوران، اور اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں لندن سے، برطانیہ سے، تو آپ شام کے 5 بجے سے لے کر 7 بجے کے دوران اس میں کال کر سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کال کرنے کا کہا، یہ نمبر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اشتباہ ہو جائے کہ کس وقت کرنا ہے، تو وقت میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس ٹائم میں لائیو سٹریم ہوتی ہے پروگرام کی، لائیو چلتا ہے پروگرام۔ اب نیکسٹ ڈے 3 ٹائمز یہ ری پلے کیا جاتا ہے پروگرام، اس میں آپ کال نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ ریکارڈڈ ری پلے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ صبح کا ٹائم ہوتا ہے 4 بجے،
पाकिस्तानी टाइम, इंडियन टाइम 4:30 बजे हो जाएगा सुबह का टाइम, और ज़ोहर से पहले पाकिस्तानी टाइम 10:30 बजे हो जाएगा और इंडियन टाइम 11 बजे हो जाएगा, और मगरिब से पहले पाकिस्तानी टाइम 4 बजे हो जाएगा और इंडियन टाइम 4:30 बजे हो जाएगा। लिहाजा 3 टाइम्स रिप्ले किया जाएगा ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम नेक्स्ट डे में, और आप इसमें भी मौला का ज़िक्र सुन सकते हैं, सलाम को मोमिनीन को कहते सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद शरीक होना चाहें तो हमारे प्रोग्राम का टाइम हमने अर्ज़ कर दिया, इसमें आप शरीक हो सकते हैं। अब हम मौला की बारगाह में हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक फरमान मुबारक है, मन सर्रा अन यकूना मिन अस्हाबिल काइम अलैहिस्सलाम फलयंतज़िर वलयअमल बिल वरअ व महासिनल अखलाक व हुवा मुंतज़िर। फरमाया मासूम अलैहिस्सलाम ने, जो शख्स चाहता है, पसंद करता है, यह सुर्रा मन रआ, सामर्रा का पुराना नाम सुर्रा मन रआ, जिसने देखा उसके दिल को ठंडक पहुँच गए। कल्बे अब्बास साहब घोटकी से हमारे साथ मौला को सलाम पेश करने के लिए हाजिर हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद, मौला अली मदद किबला ज़ियारत हो सकती है हरम की? क्यों नहीं? आप अगर आप किसी डिवाइस पर टेलीविज़न को देख रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रोग्राम में आप मौला की ज़ियारत भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ़कत तिलावत कर सकते हैं ज़ियारत की। अब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के लाइव प्रोग्राम में शरीक हैं, करबला की तरफ रुख करें और आपकी आवाज़ घोटकी सिंध से करबलाए मौला पहुँच रही है। और अगर आपने गामू शाह का नाम सुना हो, सिंध से पैदल चल के आते थे करबला जब आते थे तो सीधे सीधे चलते हुए आते थे, वापस जाते थे ना, पुश्त नहीं करते थे करबला की तरफ। सारी ज़िंदगी इन्हीं ज़ियारतों में उन्होंने गुजार दी। सिंध माशाल्लाह मौला के मवालियों की सरज़मीन है। करबला की तरफ रुख करें, खड़े हो जाएं, सीने पे हाथ रखें, सर झुकाएं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की नीयत करें और मौला को सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सकलैन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाएं, जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाएं, आपके घर में जो मुश्किलात हैं मौला वो हल फरमाएं और आपको किसी भी कमीने का मुहताज ना होने दें मौला। मौला आपके माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमाएं। मौला के हज़ूर हमारी दरख्वास्त पेश करें कि हम किसी मुश्किल का शिकार हैं। मौला जानते हैं हमारी मसाइल को, मुश्किलात को, उससे हमें आज की रात छुटकारा चाहिए मौला के दरबार से। आपने मौला की बारगाह में आवाज़ पहुंचाई है। मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, हम तो अलम के नीचे जाते हैं, मुश्किल हल हो जाती है हमारी। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में है। मैं दुआ करता हूँ मौला आपकी मुश्किल को गैब से हल फरमाएँ, आपकी परेशानी हल फरमाएँ। आपको जो भी परेशानी है बता सकते हैं या नहीं बता सकते, जैसी भी आपकी परेशानी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात अक़दस का सदका आपकी मुश्किलात को हल फरमाएं। एक बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, मोमिनीन अपनी मुश्किलात के हल के लिए, परेशानियां दूर करने के लिए और जो बे औलादी को दूर करने के लिए, माल रिज़्क़ में इजाफे के लिए, मोमिनीन इस प्रोग्राम के तहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV के लिए नज़र करते हैं तो मौला उनकी मुश्किलात हल फरमाते हैं। तो आप भी क्या इस मिशन में शरीक होना चाहेंगे? जी जी जरूर, यकीनन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने जो ये नज़र का इरादा किया है, 14 मासूमों में से किस मासूम अलैहिस्सलाम या शुहदाए करबला या अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में से किस मासूम के नाम करना चाहेंगे ये नज़र, ताकि आपकी मुश्किलें हल हो जाएं?
یہ ہم سے تو ایک شہداء کے نام کرنا چاہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لال آپ کی مشکلات حل فرمائیں اور آپ کے گھر میں جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، جو امتحان ہے، مولا اس میں آپ کو کامیاب فرمائیں، شر شیطان و اعداء سے آپ کو محفوظ رکھیں. ہماری خواہش ہوگی یہ واٹس ایپ نمبر جس پر آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ 14 مومنین کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی پروگرام میں شریک ہو سکیں اور مولا کو سلام پیش کر سکیں. اس میں بھی انشاءاللہ آپ کا ثواب شامل ہوگا. پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران روزانہ پروگرام ہے، اس میں آپ روزانہ کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میری دعا ہے کل آپ کال کریں. جی ویڈیو پہ زیارت نہیں ہو سکے گی؟ آپ لائیو پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں. اس وقت کنٹرول روم سے آپ کو مدد کریں گے آپ کی انشاءاللہ. سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں. انشاءاللہ دعا ہے کل آپ شریک ہو، کل آپ شریک ہو تو کہیں مولا نے ہماری مشکل حل کر دی ہے. سلامت رہیں، آباد رہیں. الہی آمین. سلامت رہیں. بہت شکریہ شریک ہونے کا، شکریہ سلام پیش کرنے کا، شکریہ مولا کی بارگاہ میں توسل کا، شکریہ. مولا آپ کو عزت عطا فرمائیں. سلامت رہیں، بہت شکریہ. قلب عباس صاحب گھوٹکی سے، اور مولا کے لیے عقیدتیں اور محبتیں تو ہر شخص رکھتا ہے، لیکن کچھ منطقے اللہ تعالیٰ نے خاص کیے ہیں ایسے کہ وہاں کے لوگ فریفتہ ہیں مولا پر، جن میں بر صغیر ان مناطق میں سے ایک منطقہ ہے. اب میں اس بر صغیر کے حصے بیان کرنا چاہوں تو کروڑوں میں آبادی جاتی ہے جو مولا کے نام پر مرتے ہیں، جن میں مذہب کی قید نہیں ہے. ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سب امام حسین علیہ السلام پر مرتے ہیں. اور مولا کی نام پر ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یعنی اہل سنت، اہل تسنن، انہوں نے تعزیے بنائے اور صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ان کے آباء و اجداد کی، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی وہ دلیل ہیں. بہرحال ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، جو بھی اہل بیت سے محبت رکھے مولا اس کی مشکلات حل فرمائیں. راحت عباس صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. راحت عباس صاحب کیسے ہیں؟ خیرافیت سے ہیں؟ جی مولا آپ کو سلامت رکھیں. کربلا محلہ میں آپ کی آواز امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے ذریعے سے پہنچی ہے، تو آپ پہلے مولا کو سلام پیش کریں، پھر ہم پروگرام سے متعلقہ عرائض پیش کریں گے. کاٹ کے نہ جائیے گا کال کو. کربلا کی طرف رخ کریں، سینے پر ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت تلاوت کریں. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی غریب القربہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا قبول فرمائیں، آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں اور آپ کو جلد کربلا مولا گھر والوں کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائیں. بیٹا آپ کی کال جس پروگرام میں ملی ہے نا، اس کا نام ہے 14,000 سپانسر. مومنین اپنی مشکلات کے حل کے لیے، امتحانوں میں کامیابی کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے، عزت کے لیے، بخت کے لیے اور اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے اس پروگرام میں نظر کرتے ہیں اور اس مشن میں شریک ہوتے ہیں. تو کیا آپ بھی کوئی اپنا حصہ اس مشن میں ملانا چاہیں گے؟ جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائیں اور آپ کے بزرگوں پر رحمت برکت نازل فرمائیں. بیٹا اس نظر کا جس کا آپ نے ارادہ کرنا چاہتا ہوں، میری بات کو سن لیں پھر آپ کی بات سنتا ہوں میں. یہ جس نظر کا آپ نے ارادہ کیا ہے نا، 14 معصوموں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں سے کسی ایک فرد کے نام کر دیں تاکہ آپ کو اس کا زیادہ ثواب مل سکے. کوئی ایک نام لے دیں اہل بیت کے گھرانے کا. جی کوئی نام لے دیں. امام علی کے نام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہیں. اس واٹس ایپ نمبر کو بھی 14 مومنین کو شیئر کریں گے. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ، بتائیں آپ. میں ایک منظر سنانا چاہتا ہوں. بیٹا زیادہ طولانی تو وقت نہیں ہو سکے گا، لیکن ایک بند آپ ضرور سنائیے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. بسم اللہ. عنایت. جی. دل چھپا جاتا ہے، دل چھپا جاتا ہے ہر بار میرا ان کی طرح، منم غلام حضرت شاہ نجف، منم غلام حضرت شاہ نجف. سبحان اللہ. اس میں معبود سے کونین چلاتا ہے علی،
रात की नींद से सूरज को जगाता है अली, दर से तौहीद फरिश्तों को सिखाता है अली, तो जहां में जहां देखो नजर आता है अली। तकदीर अली अली तकदीर अली अली तकदीर अली अली, अली मौला अली मौला अली मौला, मेरे सीने में बचती यही नौबत यही दफनम गुलाम हजरत शाह नजफ, दामन को आंसुओं से भिगोए गसाल बहे, अपने गुनाह कान पे बोए गसाले बहे, तेरा रजब को काब की सूरत नहीं हटा, अरे वो आदमी नसीब को रोए गसाले बहे, सती है काबे की दीवार बसर एक शरफ मनम मनम गुलाम हजरत शाह नजफ। सुभान अल्लाह, सदा सलामत रहे, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और मौला हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये व्हाट्सएप नंबर आपने 14 दोस्तों में ज़रूर शरीक करना है, शेयर करना है, ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और इस प्रोग्राम में सलाम मौला को पेश कर सकें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। कॉल करने का शुक्रिया, स्पॉन्सर होने का शुक्रिया और तवस्सुल में शरीक करने का शुक्रिया। सदा सलामत रहें। मौला का फरमान है कि जो भी चाहता है, जिसका जी चाहता है, जिसके दिल को इस बात से ठंडक मिलती है कि वो असहाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? फरमाया कि उसे परहेज़गारी करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए? अपने अच्छे अखलाक अंजाम लाए, अच्छे अखलाक बजा लाए, ताकि वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सच्चे मुंतज़रीन में से हो सके। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने तलाश की थी आपकी खिदमत में पेश करने के लिए, एक शख्स मौला की बारगाह में आया, कहने लगा कि मौला कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, मैं क्या करूं? मेरे मौला ने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। अच्छा जी, वो चला गया। और एक शख्स दूसरा आया, उसने आकर मेरे मौला से सवाल किया कि मौला हमारे यहाँ कहत आ गया है, हमारे यहाँ कम रिज़्की हो गई है, हमारे यहाँ भूख आ गई है, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। वो भी मुतमईन हो गया, चला गया। और एक दूसरा शख्स आया, कहने लगा कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हमारे यहाँ फ़क्र आ गया है, मौला कोई अमल बताइए। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक तीसरा शख्स आया, कहने लगा कि हम कमज़ोर हो गए हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं, तो मौला ने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स जो ये सारा जरियान सुन रहा था, कहने लगा मौला 4 लोग आए, एक ने गुनाहों का कहा, आपने इस्तिग़फ़ार का कहा, एक ने औलाद का कहा, आपने इस्तिग़फ़ार का कहा, एक ने कहत का कहा, आपने औलाद का कहा, एक ने कमज़ोरी का कहा, ज़ाफ़ का कहा, आपने उसे औलाद का उसको भी आपने इस्तिग़फ़ार का फरमाया। मौला सवाल 4 थे, जवाब 1 था, इल्लत फरमाइए। फरमाया तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? फरमाया इन्नहु काना गफ़्फ़ारा गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करेंगे, चारों चीज़ें अता फरमाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस्तिग़फ़ार करने वालों में रखे और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। बहरहाल रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हर दिन ऐसा लगता है अगला दिन रमज़ानुल मुबारक होगा। काफ़ी सारी तारीख़ें देखते हैं सुबह के, ऐसे लगता है सुबह उठेंगे रमज़ानुल मुबारक होगा, रमज़ान अज़ीम होगा, रमज़ान करीम होगा। अब मैं बार बार ये वजाहत यूँ दे रहा हूँ ताकि हमें पता लगे, क्योंकि हमारे मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से सरशार मोमिनीन जी ज़व्वार मशहदी साहब हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला कैसे हैं आप? ठीक हैं? करम मौला कैसा, आप सुनाएं या अली मदद।
तामीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मदद। और मौला का कैसे बड़ा एहसान करम नवाजी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामान रहमत में रहें। और ये प्रोग्राम को आप खुद भी देखते हैं इंशाल्लाह? माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, आपको पता है कि जब तक प्रोग्राम में कनेक्ट ना हो उस वक्त तक खाना नहीं खाता हूँ, जब तक मौला आपको आपके जोश विला को रोज़ाना ज़्यादा फरमाए और ये मोहब्बतें आपकी नस्लों में जारी और सारी रहें। हमारी ख्वाहिश है ये 14 मोमिनीन को भी आप नंबर शेयर फरमाएं इंशाल्लाह, ताकि वो भी आपकी तरफ से ज़्यादा शरीक हो सकें, ताकि मशदी साहब भी लड़काना से और मोमिनीन को लेकर आएँ, ताकि उस सवाब में आपका भी हिस्सा मज़ीद बढ़ चढ़ कर मिल सके आपको। मौला की बारगाह मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है और गूंज रही है आपकी आवाज़ करबला में। करबला की तरफ रुख करें, सीने पर हाथ रखें, सर झुकाएं, नज़रों को झुका के मौला के ज़ात अक़दस पर सलाम भेजें ताकि आप जल्द करबला आ सकें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या सहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास अलमदार, अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका जमी शोहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला ए करीम करबला, ए नवाब करबला, ए सरदार करबला, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं और सिलवान से कि आप करीम हैं, करीम इब्ने करीम हैं। मौला आपको वास्ता है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी का, मौला आपको वास्ता है सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारियों का, मेरे मौला पाक सैयदा बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे के सदके में उम्मत जहाँ दुनिया भर में जहाँ जहाँ से भी दुनिया ये आवाज़ सुन रही है, मौला तमाम माओ बहनों बेटियों के पर्दे महफूज फरमाइए। मौला जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमाइए। मौला जो बेरोजगार हैं मौला सज्जाद के सबके उनके रिज़्क़ रोज़ी में वसअत और कामरानी अता फरमाइए। ए करीम करबला, ए नवाब करबला, मौला 8 महीने गुजर गए आपकी ज़ियारत न कर सके हैं, दिल बड़ा बेचैन है, मौला इज़्ज़त अता फरमाइए। जनाब बाबुल हवाइज गाज़ी अब्बास के सबके मौला हमें जल्द से जल्द अपनी फैमिली के साथ करबो बला आने की तौफीक अता फरमाइए। मौला रिज़्क़ रोज़ी में वसअत और कामरानी अता फरमाइए। हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द ज़रूर फरमाइए। मौला के अदना सिपा में शमूल फरमाइए। बिलखुसूस इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क को मौला और तरक्की और कामरानी अता फरमाइए। इतने दोस्तान इसमें काम कर रहे हैं, मौला तमाम दोस्तान की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाइए। बिलखुसूस ये दोनों सादात हैं सैयद खादिम हुसैन साहब और किबला, मौला इन दोनों सादात के तौफीकात खैर में इजाफा फरमाइए। मौला कोई गम न दीजिए, गम में शब्बीर के सिवा इनकी दुआओं के तुफैल मौला हमारी दुआएं अपनी बारगाह इलाही में मुस्तजाब फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपके माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए और आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। ढेर सारी दुआएं हैं, मौला आपके घर की जो मुश्किलात हैं उन्हें हल फरमाए। सदा सलामत रहें। कॉल करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के हम मुंतज़िर रहेंगे। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। मौला की ज़ात अक़दस पर सलाम है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह तबारक व तआला जो कोई कहे कि अल्लाह करता क्या है, तो अल्लाह ताला सलाम भेजता है अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ताला तमाम कार खुदाबंदी एक कुन के लफ्ज़ से अदा कर देता है, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम पर ख़ुद खुदावंद मुताल सलाम भेजता है। अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, खालिक है, मालिक है, मुही है, मुजीब है, मुमीत है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको ख़ुसूसियत से बयान फरमाना चाहा है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। शुरू में खुद फरमाया सलाम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और मलाइका
नबी पर सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों तुम भी सलाम भेजा करो। लिहाजा अल्लाह सलाम भेजता है तो हमें भी सलाम भेजने का हुक्म है। ये वो बेहतरीन अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला भेजता है। बहरहाल ये अलग बहस है कि अल्लाह का सलाम क्या है और हमारा सलाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला का सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर मुस्तमिर हम लगातार सिलसिलावार बग़ैर क़ता होने के रहमतों बरकतों का अहले बैत पर नछावर होना है। और हमारा सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला से इन रहमतों के बेपायान व बेइंतहा होने की दुआ है। हम दुआ करते हैं, अल्लाह नाजिल फरमाता है। ये नहीं है कि हमारे दुआ करने से ही वो नाजिल फरमाता है, बल्कि वो कादिर मुतलक पहले ही बयान फरमा चुका है कि मैं फरमाता हूँ इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाता है, लेकिन हम क्या करें? ऐ लोगों तुम भी भेजा करो। हमसे तकादा ये है दुआ करो, मैं भेज रहा हूँ, तुम दुआ करो, मैं भेज रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस नेक काम में शरीक होने की दावत दे रहा है कि तुम दुआ करने वाले बन जाओ, ये दुआ लौट कर तुम तक आएगी। एक दरूद होगा, 100 रहमतें तुम्हारे ऊपर भी नाजिल हो जाएंगी। तुम एक दरूद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजोगे, उसका नतीजा ये होगा तुम पर 100 रहमतें नाजिल हो जाएंगी, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, रहमतें होंगी, बख्शिश हो जाएगी। लिहाजा दरूद का बहुत ज़्यादा सवाब है। तेरी हैबत के असर ऐसे हुए हैं अब्बास, चंद मिसरा बड़ी मुश्किल से बने हैं अब्बास, खुशबुओं रंगों नज़ारों में बसे हैं अब्बास, 14 सदियों से बहारों में हरे हैं अब्बास। शह ने जब कह दिया लड़ना नहीं फिर कैसे कहूँ, जंग करने की तमन्ना से लड़े हैं अब्बास। कमाल जुमला कहा है। शह ने जब कह दिया लड़ना नहीं फिर कैसे कहूँ, जंग करने की तमन्ना से लड़े हैं अब्बास। कंकरों की तरह उम्मीद सुखन में हम लोग, कंकरों की तरह उम्मीद सुखन में हम लोग, तेरे परचम की हथेली पे पड़े हैं अब्बास। चांद भी हैं बनी हाशिम का शजर भी हैं यही, चांद भी हैं बनी हाशिम का शजर भी हैं यही, अपनी शाखों को कटा कर भी हरे हैं अब्बास। काबा कौसैन की कौसैन तुम्हारे बाजू, काबा कौसैन की कौसैन तुम्हारे बाजू, और एक खैमे के पहरे से बंधे हैं अब्बास। अपनी कामत को बढ़ाया न सहारे से किसी, अपनी कामत को बढ़ाया ना सहारे से किसी, धूप में रह के भी साए से बड़े हैं अब्बास। तेरे परचम के फरेरे जो मेरे हाथ आया, तेरे परचम के फरेरे जो मेरे हाथ आया, फिर कहीं जाके मेरे पैर जमे हैं अब्बास। तेरे रहवार अलम मशको वफा सब्रो रिज़ा, तेग रहवार अलम मश्क वफा सब्र रिज़ा, साथ के साथ कसीदे ये तेरे हैं अब्बास। तेरे रहवार के कदमों से अड़ी गर्द यहाँ, तेरे रहवार के कदमों से उड़ी गर्द यहाँ, और चेहरों के वहाँ रंग उड़े हैं अब्बास। ये अलम मजलिसों मातम में उठाने वाली, ये अलम मजलिसों मातम में उठाने वाली, तूने चाहा तो अलमदार बने हैं अब्बास, तूने चाहा तो अलमदार बने हैं अब्बास। ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब ज़हरा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। मौला हुसैन वालेकुम सलाम। या अली मदद।
या अली मदद अलैहिस्सलाम। मौला आपको सलामत रखें। आप पहले से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 की इस प्रोग्राम के तहत स्पॉन्सर हैं। हमारी ख्वाहिश होगी 14 मोमिनीन में ये व्हाट्सएप नंबर भी शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी इस प्रोग्राम में 10 से 12 के दौरान रात में कॉल कर सकें और स्पॉन्सर हो सकें इंशाअल्लाह। जी आप करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, सर को झुका के मौला की बारगाह में सलाम पेश करें ताकि मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं और जल्द करबला मौला आना नसीब हो जाए। बिस्मिल्लाह, सलाम पेश करें मौला को। अस्सलाम वालेकुम मौला हुसैन बादशाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या वादुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या असहाबुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम कमा बनी हाशिम। अल्लाहुम्मा कुल्ली हुजात बिन हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलावतु अलैहि व अला बाफियाज सात व फी कुल्ली सात व ली व हाफिज व काइद व नासिर व दकीक व इला हता तुस्किन व ज़कात व तिफियत व रहमतिक या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। ए बादशाह हुसैन, हमारे सलाम को अपनी बारकत मुकद्दस मुकब्बल मंजूर फरमा और हमें भी अपनी पाक मुकद्दस ज़ियारत करना नसीब फरमा मेरे बादशाह। मौला हुसैन, आपकी आकाज़ादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह, आपकी बेटी बीबी सकीना के रोज़ा पाक में जो भी मुश्किलात है, जो भी दुश्मन है मौला उनको नशरत नबूद फरमा। बीबी ज़ैनब का रोज़ा ज़ायरीन के लिए आबाद फरमा मौला। बीबी के रोज़े में जो भी मुश्किलात परेशानियां हैं वो दूर फरमा। बीबी ज़हरा के हक को अया कर मौला, मेरी मन्नत है आप पूरी कर दें मेरे बादशाह हुसैन। मैं बीबी ज़हरा का हक अया करूँगी, मैं बीबी ज़हरा के नाम की मजलिस करवाऊँ मेरे मौला, मुझे इस काबिल कर दे मौला। भागने आका के ज़हूर में ताजीर फरमा। शमशाद अख्तर, इजाज, नजफ अब्बास को, यावर को, हबीब अली को शिफा दे मौला। मौला फिजा बतूर, नजफ अब्बास, फुरैन ज़रा, हबीब अली के अच्छे नसीब फरमा मौला हुसैन। ए मौला हुसैन, हमारी मुश्किलें हल नहीं हो गई मौला हुसैन, आप दूर फरमा मौला। जो परेशानियां हैं सिर्फ मेरी परेशानियों को सिर्फ आप ही समझ लें मौला हुसैन, वो परेशानियां खत्म फरमा दे मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, मुश्किलात हल फरमाएं और आपकी जो जो तमन्नाएं हैं मौला मकबूल फरमाएं। सदा सलामत रहें। कॉल करने का शुक्रिया, स्पॉन्सर होने का शुक्रिया और इंशाअल्लाह 14 मोमिनात को, मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर शेयर फरमाएं ताकि वो भी प्रोग्राम में शरीक हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला की अमान में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मौला की मोहब्बत का इजहार करना हम सब के लिए लाजिम हो जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर तबलीग की कैफियत हो, पहुँचाना हो, लोगों को माइल करना हो, लोगों को कायल करना हो, लोगों को बताना हो, वहाँ पर हमारे लिए वाजिब हो जाता है। अब जिस किस्म का ज़माना फैलता जा रहा है और हर शख्स दुनियावी मसरूफियात में इतना मगन हो चुका है कि उसे इधर उधर देखने की फ़ुर्सत ही नहीं है और मस्जिद और इमाम बारगाह जाना आसान नहीं रहता जा रहा है। वहाँ पर टेलीविज़न भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिनमें से एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 है। ये आपकी खिदमत कर रहा है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल कर रहा है, मोहब्बतें आपकी समेट रहा है, आपको ज़ियारतें करा रहा है, आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहा है। करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले अतहार अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र आप तक पहुँचा रहा है और अज़ान, ज़ियारत आशूरा, सलाम, ज़ियारतें, मुनासबतें और तारीख़ों के एतबार से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। लिहाजा इस टेलीविज़न का काम भी एक किस्म का इमाम बारगाह वाली खिदमात पेश करने का है, तो लिहाजा इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी मोहब्बतों को मिलाएं और अपनी मुश्किलात के हल करने के लिए इस प्रोग्राम में शरीक होइए ताकि आपकी मोहब्बतें आप तक पहुँच सकें। जी, फ़ातिमा बतूल साहिबा मुल्तान से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। या अली मदद। आप मौला की बारगाह में सलाम पेश करें और अपनी दुआ पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। समानी दुआ को मेरा बेटा है मौला अली रज़ा सुबह कब्र बनाना है मौला से हो जाए
वो गला खराब है, अल्सर है, तीव्रता है इंशाल्लाह। मेरे पिता मेरा भाई का पिता मौजूदा तीव्रता है, और दुआ कर, और दुआ कर अब्बा का रामस है, और पुप्पू को ये मोहर पे कब्र गुजारना है, तबला और यहाँ साहब। इलाही आमीन। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, और जिन बच्चों के लिए आपने दुआ की मौला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। आपकी फुप्पो और आप करबला आना चाहती हैं, आप अपने वालिद साहब के साथ, मौला आप सबको करबला आने की तौफीक अता फरमाए। और आप इंशाल्लाह हम आपकी तरफ से दुआ गो हैं, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा सलामत रहें। मैं आपकी तरफ से ज़ियारत तिलावत कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन माअका जमीआ ला सय्यमा अबल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सदा सलामत रहें, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ हासिल हो। सदा सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे, और दोस्तों को भी व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए ताकि वो भी कॉल करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो सकें। सलामत रहें। ये मोहब्बतें, ये चाहतें, ये मवद्दतें, ये विलायतें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से हैं। नजात इन्हीं से मिल रही है, बख्शिश इन्हीं के दर की बांधी है, अताएँ इनके दर से मिलती हैं, और हम इन्हीं से पाकर खुश हो जाते हैं। लिहाजा हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर और मुख्तलिफ़ कैफियत में मौला से तवस्सुल करते हैं। मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का ज़िक्र चल रहा था, तो मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में काफ़ी सारी बातें हैं जो पेश करना ज़रूरी है। बहरहाल हम जब मौला की बारगाह में होते हैं ना, तो हम देखिए शुक्र करना चाहिए। शुक्र के तरीके हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका तो यही है कि सुबह शाम आपको शुक्र करना है। और जिसने ये शुक्रना की शुक्र करें कि अल्लाह तूने हमें अपनी तौहीद अता फरमाई, मुसलमान पैदा किया, शुक्र अल्लाह तेरा तूने हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में बनाया, शुक्र अल्लाह तेरा तुमने हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जैसे मौलवी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जैसे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत नसीब फरमाई, शुक्र है अल्लाह तूने हमारा रिज़्क़ अपने हाथ में रखा, शुक्र ए अल्लाह तेरा तूने हमें हमारे गुनाहों को के ऊपर पर्दा डाल दिया और हमें किसी के आगे रुसवा नहीं होने दिया। ए अल्लाह शुक्र तूने हमें किसी का मोहताज नहीं होने दिया। शुक्र लिसानी है, शुक्र और हमारा कल्बी है, और शुक्र हमारा अमल से भी हो सकता है। नेमतों का सही इस्तेमाल ये हमारा अमल का शुक्र है, इसे हम कर सकते हैं। और हमें ये तरबियत दी गई है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से। और मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना अबी अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे बाबा अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम, मा ज़ुकिरा निअमतुन लिल्लाहि अलैहि इल्ला सजद, मेरे मौला के सामने कभी ज़िक्र किया गया किसी भी नेमत का मगर ये कि उन्होंने सजदा फरमाया। वला करा आयतुम मिन किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फ़ीहा सुजूदुन इल्ला सजद, नहीं पढ़ा उन्होंने किसी भी एक आयत को कि जिसके अंदर अल्लाह ताला के सजदे का ज़िक्र था, उन्होंने सजदा किया हो। यानी जिस भी आयत की तिलावत फरमाई उसमें सजदे का ज़िक्र आया, मौला ने सजदा कर दिया। वला दफ़ा अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अन्हु सूअन यख़शाहु औ कैदिन का अन्नहु कैदो कायदिन इल्ला सजद, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे दूर ना की कोई
किसी धोखा देने वाले के धोखे को, किसी मकर करने वाले के मकर को, जिससे वो यानी मुनासिब नहीं समझते थे। तो जब उनसे ये परेशानी, ये किसी दुश्मन का कि शर उनसे दूर हुआ, फ़ौरन उन्होंने सजदा फरमाया। वला फ़रग़ मिन सलातिन मफ़रूज़तिन इल्ला सजद, मेरे मौला कभी भी नमाज वाजिबा से फ़ारिग नहीं हुए, फ़र्ज़ व नमाज से फ़ारिग नहीं हुए, मगर ये कि उन्होंने सजदा फरमाया। वला वफ़क़ लिइस्लाहि बैन इस्नैन इल्ला सजद, और मेरे मौला कभी भी, जब कभी भी दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवाने में कामयाब हुए, मुवफ़्फ़क़ हुए, उन्होंने सजदा फरमाया। वकाना असर सुजूद फ़ी जमीए मवाज़िअ सुजूद ही, और ये सजदे करने के असरात जो थे ना, ये मेरे मौला के तमाम सजदे करने वाले मकामात पर पाए जाते थे। फ़सुम्मी सज्जाद लिज़ालिक, इसी वजह से मेरे मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नाम या इससे मेरे मौला मंसूब हो गए, मौसूफ़ हो गए, मेरे मौला मशहूर हो गए। इसी की वजह से मेरे मौला पहचाने जाने लगे। वो क्या था? सज्जाद। सजदा ज़्यादा करने की वजह से मेरे मौला को सज्जाद कहा जाने लगा। बहरहाल, और मेरे मौला का एक और तुर्र इम्तियाज़ ये था कि मेरे मौला दुआएं बहुत तवील फरमाया करते थे। एक तो सजदा और दुआएं, इसीलिए से दुआओं का कुरान जो है ना, उसे मेरे मौला के नाम से मंसूब किया गया है, जिसका नाम है सहीफ़ा सज्जादिया। दुआओं का कुरान जिसे कहा गया है, वो उसे सहीफ़ा सज्जादिया कहा गया है। और मेरे मौला से मंसूब दुआएं उसमें काफ़ी सारी हैं, मुख्तसर दुआएं भी हैं और तौलानी दुआएं भी हैं, जिनमें से एक बड़ी सारी दुआओं में से एक दुआ जो है वो मुश्किलात के हल के लिए है। या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मुकारिह, ये भी उन दुआओं में से। एहसास का रसूल वफ़ा का इमाम है, कब्ज़े में अलकमा है मगर तिश्ना काम है, माथे की एक पल से छुड़ाया फुरात को, माथे के एक बल से छुड़ाया फुरात को, लगता था जुल्फ़िकार अज़ल बेनियाम है, हक़्क़े दरूद उस पे अदा हो तो किस तरह, मरकब भी जिस जरी का अलैहिस्सलाम है, कट कर गिरे तो लौह पे हातिफ ने लिख दिया, बाजू नहीं ये दीन खुदा की ज़माम है, वाजिब है उस पे मरकदे अब्बास का तवाफ, लगता है पानियों का ये बैतुल हराम है। तौकीर साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ शरीक हुए हैं। जी अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। जनाब तौकीर साहब अस्सलामु अलैकुम। जनाब, मैं इत्तेफाक की बात है, हमारी काफी दफा बातें हुई, आपस सलाम दुआ हुई, दुआएं हुई एक दूसरे के साथ, लेकिन मैंने बज़ाहिरन आपको कभी ये नहीं जानता था कि आप ये शख्सियत है, कि आपकी पिक्चर नहीं देखी थी। कहने का मतलब ये है मेरा। सलामत रहे, मौला खुश रखे आपको। तो आज मुझे कंट्रोल रूम से दिन में मैंने कुछ 1 घंटा पहले बात की थी, तो कंट्रोल रूम से पता चला, तो मैंने हवाला दिया एक प्रोग्राम का, फिर उसके बाद बताया कि ये साहब है। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मैं बड़ा मुस्कुराया देख के, और दिल में मुस्कुराया भी कि यार अच्छा ये साहब है। तो गायबाना तौर पे तो आप जानते हैं, बहरहाल मेरे ख्याल है कि कोई मैं कॉल करता रहूं बीच बीच में कभी में। सलामत रहे। जी जी। तो अभी अचानक फिर आपने एक मौजू ऐसा छेड़ा, तो मुझे ये खादम उसमें कुछ ऐड करना चाहेगा अल्फाज में, जो आप शुक्र की बातें कर रहे थे। शुक्र 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 है ना। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद है,
ये शुक्र इंतहा है इस शुक्र की कि आप जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या उठा के देख लें, जो 2 सहाबियों का वाक़या उठा के देख लें, तो शुक्र का आपको पता। तो मैं इसमें इजाफा सिर्फ ये करना चाहूँगा कि नमाज के फौरन बाद जैसे नमाज आपने ख़त्म की है तो सजदा शुक्र में जाके इस बात का शुक्रिया भी अदा करें कि या अल्लाह तेरे उस शुक्र का भी शुक्रिया कि तूने मुझे हिदायत दी कि शुक्र कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कुछ जज्बात में बात कर रहा हूँ कि उसका भी शुक्रिया तूने मुझे ये हिदायत दी कि मैं शुक्र करूं। और फिर आपने मौला अपना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, क्या ईमान से आपने इसमें उसको साथ मिलाया। मेरी आंखों में एक तरह से गिरिया आ गया कि मैंने क्या बात है आपकी। मैं मुतासर तो पहले भी बहुत था माशाल्लाह, आप लोगों की खिदमत से, आपके लबो लहजे से, आपके प्यार से, आपके इखलाक जिस तरीके से आप ड्यूटी देते हैं। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं 40 पे अगर मेरी किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा, तो आपसे मुलाकात जरूर करूँ इंशाल्लाह। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। आप मोहब्बत से प्रोग्राम्स को देखते हैं और याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। मौला आपको सेहत दें, सलामती दें और आपकी जो दुआएं हैं मौला कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। नेक्स्ट भी आपकी शिरकत के मुंतज़िर रहेंगे और दोस्तान को भी व्हाट्सएप नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें। मौला की अमान में, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मौला की अमान में। तारीख़ कम निगाह से अब्बास क्या मिले, तारीख़ कम निगाह से अब्बास क्या मिले, ये फ़ातिमा के अश्के तहज्जुद का दाम है। वो इंतहाए नहर जो तालूत से चली, वो इब्तिलाए नहर जो तालूत से चली, अब्बास उसकी हद्दे मशीयत का नाम है। चश्मे कुशा से जानिबे बाबुल मुराद जा, खिज़रो कलीम का भी इसी पर क़याम है। पहुँचे ना मश्के पाए सकीना में जब तलक, पहुँचे ना मश्क पाए सकीना में जब तलक, रब्बे वफ़ा के दीन में पानी हराम है। हसनी हिसार हम पे इन्हीं बाजुओं का है, हसनी हिसार हम पे इन्हीं बाजुओं का है। ज़हरा का जिन पे रख्ते शफाअत तमाम है, ज़हरा का जिन पे रख्ते शफाअत तमाम है। एहसास का रसूल वफ़ा का इमाम है, कब्ज़े में अलकमा है मगर तिश्ना काम है। वाजिब है इस पे मरकदे अब्बास का तवाफ़, लगता है पानियों का ये बैतुल हराम है, लगता है पानियों का ये बैतुल हराम है। जनाब नजमुल हसन नजम सिब्तैन हसनी साहब माशाल्लाह बहुत प्यारा लिखते हैं, मौला सलामत रखें। और यकीनन मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मोमिन के दिलों की नूरानियत है, मोमिनीन के चेहरों की तरोताज़गी है, मोमिनीन के शजरों की दलील है मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। और मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जिस दिल के अंदर होगी चेहरे पर नूर आ जाता है, और बीमारी की हालत में भी नहीफ नज़र नहीं आता इंसान जब दिल में क़ुव्वत मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आ जाती है। लिहाजा करबला मौला में मौजूद हैं, ये प्रोग्राम जारी व सारी है। बहरहाल मोमिनीन से हमारी ख्वाहिश यही है कि आप बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा मिलाइए, इसमें ख़ुद भी शरीक होइए, दूसरों को भी कॉल्स करने के लिए कहिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें। देखें मिशन कोई भी हो उसमें हौसला करना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, जज्बे को जिला देनी पड़ती है। कहीं पर भी जाकर किसी भी मौके पर इंसान में कुछ न कुछ सुस्ती थकन आ सकती है, लेकिन इसमें
اپنے آپ کو کم ہمت نہیں ہونے دینا چاہیے، ہمت کو بڑھانا چاہیے، اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرانی چاہیے، اور اپنے آپ کو جذبہ دینا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر مقصد آپ کا قوی ہے، قیمت المرء ما ہمہ، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے علامہ وزیر حیدر نجفی رحمت اللہ علیہ پر، ایک مرتبہ ہم ان کی مجلس سن رہے تھے، فرمایا قیمت المرء ما ہمہ، انسان کی قیمت وہ ہوتی ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اب انسان نے ایک کام کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، وہ اس کی قیمت ہے اس شخص کی۔ اب آپ نے دین اہل بیت علیہم السلام، اللہ کے دین کو، اسلام کو قبول فرمایا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس میں نجات پانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی قیمت ہے۔ آپ اس میں ہدایت پانا چاہتے ہیں، یہ قیمت ہے۔ آپ اس میں اہل بیت علیہم السلام کا قرب پانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی قیمت ہے۔ آپ اس میں اہل بیت علیہم السلام کو جاننا چاہتے ہیں، ان کی معرفت چاہتے ہیں، ان کی مودت چاہتے ہیں، یہ آپ کی قیمت ہے۔ بہرحال ہم جس بھی جگہ پر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہمارا ارادہ نیک ہے، اور ہدف کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، کیونکہ اب یہ وہ ہیں جن کی رضا کو اللہ چاہتا ہے۔ ہر کسی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں اہل بیت علیہم السلام جن سے اللہ راضی ہے، یہ اس سے راضی ہیں۔ یہ فقط اہل بیت علیہم السلام ہے، ہر کوئی نہیں ہو سکتا ایسا۔ کون ایسا جو اللہ سے راضی ہے؟ کون ہے ایسا جو اللہ سے راضی ہے اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ؟ اہل بیت علیہم السلام۔ اور کون ہے جن سے اللہ راضی ہے؟ وہ بھی اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی میں جرت نہیں وہ کہہ سکے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی جگہ پر مخمسے میں، کہیں نہ کہیں وسوسے میں، کہیں نہ کہیں ششدر ہے، کہیں نہ کہیں بے چین ہے، کہیں نہ کہیں گھبراہٹ ہے، کہیں نہ کہیں لرزاہٹ ہے، کہیں نہ کہیں پریشانی ہے، کہیں نہ کہیں بے چینی ہے۔ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ ہر وقت چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ فقط جن سے اللہ راضی ہوا وہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے، چاہے وہ کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہیں پر بھی کہہ دے، ہدف سب کا ایک ہی ہے کہ وہ ان سے راضی ہے اور ان کی چاہت سے راضی ہے اللہ تعالیٰ۔ لہذا ان کی چاہت کو اللہ نے دیکھنا ہے، لہذا ہم اہل بیت علیہم السلام کی چاہت پر عمل کرتے ہوئے دین حق کا، مذہب اہل بیت علیہم السلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور خواہش ہے نرگس صاحبہ ٹورنٹو سے موجود ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جناب نرگس صاحبہ، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سلام پیش کیجئے، وقت مختصر ہے، مولا کی زیارت تلاوت کیجئے، بسم اللہ، 1 منٹ ہے فقط، بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا امام زمانیہ، حضرت قائم خدا، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یا امام بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تھوڑا سا پہلے فون کیا کیجئے تاکہ آپ کی کال بر وقت مل سکے اور آپ زیادہ مولا کو توسل کر سکیں اور مولا سے توسل کر سکیں اور زیارت کو پڑھ سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، شرکت فرمائی۔ انشاءاللہ 14 مومنین میں واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیں گی تاکہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکیں اور توسل کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ پر سلامتیاں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کو انشاءاللہ 14 مومنین کو یہ واٹس ایپ نمبر ضرور شیئر فرمائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ۔ پروگرام کا آخری وقت اپنی آخرت کو یاد کرنا، آخرت کے اندر ہمارا جن کے ساتھ حشر و نشر ہے انہیں یاد کرنا، جن کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہے اور ہم چاہتے ہیں جن کے ساتھ حشر و نشر ہو وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام میں سے ایسے وہ جنہیں اللہ نے فانتظروا انی معکم من المنتظرین قرار دیا۔ لہذا آئیے ان کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔
آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔